આજે ભારતનો દરેક નાગરિક રાત્રે સુખ શાંતિ અને ચેનથી સૂઈ શકે છે તેનું કારણ એ જ છે કે ભારતીય આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ રાત્રે જાગતા હોય છે. આજે આપણી સાથે બેઠકમાં જોડાયા છે 38 વર્ષ સુધી ભારતીય આર્મીમાં સેવા આપનારા વેટરનલ કર્નલ વિનોદ ફલ્લીકર. તેમની પાસેથી આપણે આ એપિસોડમાં જાણીશું વર્ષ 1971માં થયેલા ભારત પાકિસ્તાનના બીજા યુદ્ધ વિશે, કારગિલ યુદ્ધ વિશે અને કાશ્મીરના તેમના અનુભવો. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. નમસ્કાર સર. નમસ્કાર. અમારી બેઠકમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે આપણે ઘણી બધી ચર્ચા કરવી છે, અલગ અલગ વિષયો ઉપર વાત કરવી છે. તમારી કારકિર્દીથી લઈને 1971માં ઇન્ડો પાક વોર વિશે, કારગિલ વિશે અને કાશ્મીરના જે ઘટનાઓ બની હતી તેના વિશે આપણે વાત કરવી છે. મારા જેવા ઘણા બધા યુવાનો આ ચર્ચામાંથી પ્રેરણા મેળવી શકશે અને શીખી શકશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે શરૂઆત ત્યાંથી કરીએ કે તમને આર્મીમાં જવાની પ્રેરણા કેવી રીતે મળી હતી? આર્મીમાં જવા માટે પ્રેરણા મને ધ ક્રેડિટ ગોઝ ટુ NCC નેશનલ કેડેટ કોર. હું જ્યારે કોલેજમાં હતો MS યુનિટના ફેકલ્ટી ઓફ કોમર્સમાં, અને હું ગ્રેજ્યુએટ છું ફેકલ્ટી ઓફ કોમર્સ 1965-66 બેચ. પણ જ્યારે આર્મી NCC જોઈન કરી, આર્મી NCC, ત્યારે ખબર પડી કે યસ मैं परेड कर सकता हूँ. पहले साल अच्छा शूटिंग किया, अच्छा गेम खेले, इंटर फैकल्टी बास्केटबॉल, इंटर फैकल्टी હોકી રમ્યા અમે. અને અમારા જે ઘરમાં હું રહેતો હતો વડોદરામાં, ત્યાં એક અખાડા હતા. એ જમાનામાં અખાડા બહુ ફેમસ હતા અને મોબાઈલ નહોતો. એટલે ફાધર બી હી વોઝ અ વેરી ગુડ રેસલર. ફાધર પણ એ ટેક્સટાઇલ મેનેજર હતા. તો સાંજે સ્કૂલથી આવ્યા એટલે ચાલે લંગોટ પકડી ચાલતી ત્યાં. એટલે અમે અખાડા ખોદના, ખોખો, કબડ્ડી ત્યાં રમવાનું, મલખમ કરવાનું. હા, તો જ્યારે આપણે કબડ્ડી રમીએ કે ખોખો રમે, ઇટ હેઝ ગોટ ધ કરેજ. करेज मानस ने केवरी था भाई, जब मैं तेरी टांग खींच रहा हूँ, तेरे को मार रहा हूँ, तो ये जो होता है ना, ये आई कैन डू समथिंग. હું પાતળો છું બિલકુલ, બટ આઈ કેન ડૂ સમથિંગ, એ ત્યાંથી ડેવલપ થઈ. પછી જ્યારે કોલેજમાં આવ્યા, ધીમે ધીમે NCCમાં આવ્યા, આ બધી ખબર પડી. એન્ડ યુ વિલ બી હેપી ટુ નો કે આઈ વોઝ ધ બેસ્ટ કેડેટ ઓફ ગુજરાત 1965 બેચ, બેસ્ટ શૂટર, બેસ્ટ ઇન પરેડ. અને હું દિલ્હી પરેડમાં ગયા હતો જ્યારે आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री की डेड बॉडी रशिया से आई थी. तब हमने शोक सलामी, जिंदगी में पहली बार शोक सलामी हमने सीखा है NCC कैडेट. એટલે ક્રીમ ઓફ ગુજરાત, ક્રીમ ઓફ ઓલ ઓવર ધ ઇન્ડિયા 26 જાન્યુઆરી માટે અમે ત્યાં ગયા હતા પરેડ માટે. અને આ સો દેટ ડેવલપ મી કે યસ આઈ કેન ડૂ સમથિંગ. અને એ ચક્કરમાં શું થયું કે સાહેબ, એક दूसरे को देख के फॉर्म भरा. પહેલી વાર હું ફેલ થઈ ગયો, બીજી વાર મારું ફોર્મ રિજેક્ટ થઈ ગયો, ત્રીજી વખત હું પાસ થઈ ગયો. પણ પ્રોબ્લેમ શું હતો, એ જમાનામાં ટુ બીકમ એન ઓફિસર, IAS, IPS અને આર્મી, એરફોર્સ, નેવી, ઇંગ્લિશ વોઝ અ મેન્ડેટરી. અને અમે मराठी स्कूल ना, गुजराती स्कूल ना विद्यार्थी, इतना कमांड इंग्लिश पर नहीं था हमारा. लेकिन क्वेश्चन जो मालूम पड़ा, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि साहब કેવી રીતે કરવાના ઉત્તર, વાય યુ વોન્ટ ટુ જોઈન આર્મી, ઇફ આઈ ડોન્ટ સિલેક્ટ યુ, ભાઈ હવે કેવી રીતે જવાબ આપવાનો આપણે? હાઉ મેની બ્રધર્સ યુ આર, હાઉ મેની બ્રધર્સ યુ હેવ. આટલા ફાસ્ટ અંગ્રેજી બોલે આપણને યાર, એમાં ટ્રાન્સલેટ કરવાનું, પછી ઇંગ્લિશમાં તે હિન્દીમાં છે, મરાઠીમાં, પછી તો બીજો સવાલ આવી જાય. સો આઈ હેડ અ વેરી ટફ ટાઈમ. પણ ધીરે ધીરે હું રાત્રે જ્યારે અભ્યાસ કરતો હતો, તો मेरी माँ मुझे रात को 2 या 3 बजे चाय पिलाती थी. बोलते गांडो થઈ જશે છોકરો. પણ હવે તો શું કરે, जब मैं पूरा बड़ौदा मेरे को जानता है, गुजरात के NCC जानते हैं, अपराइट कैडेट બટ ફેલિંગ, અપરાઇટ કેરેટ ફેલિંગ કેવી રીતે યાર? અને હું જ્યારે સિલેક્ટ થયો ત્યારે બોમ્બે ટ્રાફિકમાં પણ સિલેક્ટ થઈ ગયો અને અહીંયા શોર્ટ સર્વિસ કમિશનમાં સિલેક્ટ થયો. શોર્ટ સર્વિસ કમિશન એટલે હજુ પણ છે, એ વખતે OTS મદ્રાસ બોલતા હતા, ઓફિસર્સ ट्रेनिंग स्कूल मद्रास. अभी OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, उसका चेन्नई हो गया, जैसे अपना बड़ौदा का वडोदरा हो गया. તો એ વખત અમને ટ્રેનિંગ માટે ત્યાં અમે ગયા. ત્યાં बहुत अच्छा लगा कि आई हैव अचीव्ड माई एम बीइंग ए ब्राह्मण फैमिली. બિલકુલ બધા દોસ્તોમાં હું પાતળો દોબળો હતો, પણ ફિઝિકલી આઈ વોઝ વેરી ટફ. એન્ડ ઇટ હેલ્પ મી, જેને આપણે કહીએ ને પ્રયત્નાંતિ પરમેશ્વર. ઇફ દેર ઇઝ અ વિલ, દેર ઇઝ અ વે. મેક અપ યોર માઇન્ડ, મેક અ ફોકસ યોર સેલ્ફ. ત્યાંથી હું લર્ન કરું મારે ફોકસ થવું જોઈએ. હાફ હાર્ટેડ અપીલ તો
विकेट कीपर भी हाफ हार्टेड अपील करेगा, अंपायर उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन अगर विकेट कीपर जंप करेगा LBW में, तो दैट इज फुल फ्लेज अपील समझ हुई है, एंड दैट मोटिवेटेड मी टू ज्वाइन. પણ આ જે બે વખત માર ખાધો ને, मेरे दिल को बहुत चोट लगे. डेड बॉडी पड़ी है 71 वॉर में, देखी डेड बॉडी है, इज अ डेड ना, बट ही इज इंजर्ड, लुक आफ्टर हिम. पीछे से आदमी बता आएगा उसको, तू आगे चल. पॉजिटिव थिंकिंग कि मारो एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कैप्चर कारगिल हिल. और ये जो हमको ट्रेनिंग बेस में मिलता है ना, टेरिफिक ट्रेनिंग बैक, टफेस्ट ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड. और हम जब आगे के जैसे सीनियर बनते हैं, कैप्टन बनो, मेजर बनो, आपको वेरियस कोर्सेज पे जाना पड़ता है. હવે આપણે આગળ વધીએ થોડા અને તમારી કારકિર્દી વિશે વાત કરીએ. તો તમે કઈ કઈ જગ્યાએ તમારું પોસ્ટિંગ થયું હતું અને ત્યાં તમે શું સેવા આપી છે? એકચ્યુઅલી જ્યારે અમારા વખતે જ્યારે અમે ટ્રેનિંગ કરતા હતા ને, ત્યારે પછી आई ज्वाइन रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, એટલે તોપખાના. जैसे बोफर्स आप सुना होगा, अभी गुजरात में 2 टाइप की गन्स बनती है, एक वज्र 49 एंड 777 આપણા ગુજરાતમાં ભરૂચ પાસે બને છે. तो आई एम फ्रॉम आर्टिलरी. और आजकल यूक्रेन में भी आर्टिलरी चल रही है, तोपखाना वॉर. तो आई वॉलंटियर्ड फॉर एनी रेजिमेंट, एनी बटालियन, जो भी देना है. तो मेरे को मेरे बॉस से, नाउ ब्रिगेडियर वर्टी, दैट टाइम ही वाज अ मेजर, ऐसे तेरे को कहाँ जाना बेटा? मैं कहा सर मारे तो काश्मीर में जવું છે. क्यों? मैंने कहा सर आई एम शॉर्ट सर्विस, 5 years कमीशन, 5 साल के बाद आप हमको फेंक दोगे, चल भाई थैंक यू, काम रिटायर. बट कश्मीर में कहाँ जाएगा? मैंने कहा सर वो आई एम इंटरेस्टेड इन हॉर्स राइडिंग. मेरे ग्रैंड पापा यहाँ स्टेट फोर्सेस में थे गायकवाड़ के साथ, तो घुड़सवारी करने ऐसे. कहता वहाँ एक ही रेजिमेंट है, मरेगा साला, कभी फौज में वॉलंटियर नहीं होना, जिंदगी में कभी वॉलंटियर जाऊँ ये मानस मर से. उसकी बात मुझे लास्ट तक याद है, अभी तक याद है. कभी भी हाथ नहीं खड़ा करता था मारे जाऊँ. पर मैं जाऊँ કરીને કીધું. मेरे को मिला 1st रेजिमेंट 86 लाइट रेजिमेंट पैक, 900 खच्चर, 27 घोड़े, बाय गॉड. और यूनिट थी बारामुल्ला के पास JNK में. ઓકે. उस जमाने में ट्रेन जाती थी पठानकोट तक. કશું ખબર નહીં સાહેબ, આવ્યું તમારું NRS એટલે નિયરેસ્ટ રેલવે સ્ટેશન, રિપોર્ટ ટુ પઠાણકોટ. બેસી ગયા ટ્રેનમાં. એક સ્વેટર હતું મારા પાસે, અને 2 कॉटन पैंट आता ना, ओजी ड्रेस હતી. वहाँ पे जो लोगों ने मुझे देखा, एक डॉक्टर पांडे थे, मेजर पांडे, महाराष्ट्र चैप, हम अमरावती. मुझे बोला भाई तू शादी में जा रहा है क्या? मैंने कहा सर ये रेजिमेंट. कहता वो उस वक्त तो पठानकोट से पहाड़ नजर आते, अभी तो पोल्यूशन में नजर नहीं आता, कोरोना में नजर आते थे क्योंकि पोल्यूशन डाउन हो गया था. मैं तेरी साले तेरी पलटन वहाँ पे है. मैंने कहा सर मर जाएगा, भूखों मरी जैसे, महाराष्ट्र न था ये लोग. तो उसने मेरे को, मैं कहा सर मेरे पास तो बहुत ही कम पैसा, 100-150 रुपया तनख्वाह ही साले 400 रुपये थी यार, 100-150 रुपया गजवा में आता. कहता ठीक है. मैंने कुछ एक ब्लैंकेट दे दी, एक जर्सी दी, एक टोपी. साहब ट्रकમાં બેસીને અમે 3 દિવસ પછી श्रीनगर पहुँचता था. श्रीनगर में फिर दूसरी गाड़ी कोई अगर आती है, खिंचाई બધું, भाई लिफ्ट मेरे पट्टन में जाना, अच्छा बैठ जा, पहुँच गया. वेरी टफ लाइफ. द एरिया इज उरी सेक्टर, તમે જોયું હશે, ઉરી બોર્ડર, જી. અને તંગધાર બોર્ડર, એ ત્યાં હું હતો. એટલે તમારું પહેલું પોસ્ટિંગ ત્યાં? કાશ્મીર JNK 7 years. મને વડોદરાના રસ્તા નહીં ખબર, પણ મને કાશ્મીરના રસ્તા બધા ખબર છે. શોપિયામાં કેવી રીતે જવાનું, बारामुल्ला कैसे जाने का, वो पीर बाबा के यहाँ कैसे जाने का, क्योंकि 40 साल के बाद मैं मेरी वाइफ को लेके गया था. अभी मेरी जब पलटन वहाँ पे आई, क्योंकि पलटन तो रोटेशन में आती रहती है. तो मैंने वो ड्राइवर टैक्सी वाले को बोला, मैं क्या यहाँ से टर्न लेफ्ट करे बेटा. कहता कहाँ जाना है? मैंने वो बाबा के पास. तो अब आपको अभी भी याद है? मैंने कहा साला यहाँ दौड़ता था मैं, 20-20 किलोमीटर दौड़ता था. बड़ा पीर है ना जिसमें आपको बजरंगी भाई का, बजरंगी भाई को उसमें वो है. तो ये यादें मैं सब जा करके कश्मीर गया. वहाँ से फिर हमको नीचे उतारा 71 वॉर में. अच्छा. तो जब नीचे आया मैं छुट्टी पे था, और अनफॉर्चुनेटली 1.5 महीने रजा थे. बहुत दंगा मस्ती करते थे बच्चों के साथ, कॉलेज के फ्रेंड में. एक ही ऑफिसर था कैप्टन साहब. और साला सुबह इनके पिताजी आए मेरी वाइफ के, भाई छोकरों लगन करो, हमारा पापा है, पर देव ढूंढ रहे थे. तो आ गए ये. सुबह देखा, शाम को लड़की को देखा, और रात को टेलीग्राम आ गया.
વોર લાઇક સિચ્યુએશન રિપોર્ટ ફોર્થવેથ એટલે જે ટ્રેન હશે એ ટ્રેનમાં તું બેસી જા. और फिर मैं पठानकोट पहुंचा तो वहाँ पहुंचा तो देयर वाज नोबडी. सूबेदार मेजर बोले साहब लोग तो आगे गए, सीओ साहब कल आ रही है 50 गाड़ियाँ. मैं क्यों? तो बॉर्डर पे जाने का है. અચ્છા, એટલે તમારું આ બીજું પોસ્ટિંગ હતું એ તે રેજિમેન્ટમાં પણ વોર લાઇક સિચ્યુએશનમાં અમે છામમાં ગયા. એટલે એને આપનું તમે આખનું सुंदरबनी पुंछ इलाका बोलते ना. आप जब श्रीनगर जाते हो एक बीच में जम्मू आता है, जम्मू से यूं टर्न करो तो अखनूर इलाका आता है, वो सीधा जाओ तो श्रीनगर जाता है. हाईवे रातों रात गाड़ी आएगी, आपको लोड किया, घूम 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 वो एक के बाद एक रेजिमेंट मूव कर रही है. જમ્મુ કાશ્મીર સિવાય બીજું તમે ક્યાં ક્યાં કામ કર્યું છે? जम्मू कश्मीर सर 71 वॉर आई फॉट इन जम्मू. सुंदरबनी 10 घमासान युद्ध हुआ, वो बाद में बात करेंगे. उसके बाद मेरी ट्रांसफर हुई गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर. यहाँ ઓકે. 2 વર્ષ અહીંયા ધ્રાંગધ્રામાં હતો સ્ટાફ ડ્યુટીમાં. ત્યાંથી પછી सीधी ट्रांसफर थी सिक्किम, સિક્કિમમાં 13,000 फुट के ऊपर. वहाँ मेरा बेटा भी बाद में कमांड कर रहा था, ही इज ऑल्सो कर्नल. तो मैं बेटे के पास गया, मैंने कहा मम्मी भी आई है, मुझे मेरा बंकर दिखा जहाँ मैं खाना खाता था, मुझे दिखा जो 40 साल पहले मैं था. ही अरेंज से दादा डैडी ये सब मेरे अंडर है आजकल. वहाँ एक पीर बाबा भी, उसके आपने पिक्चर देखोगे यूट्यूब के ऊपर, बाबा हरभजन की पिक्चर है वहाँ पे, वो भी है. मेरे टाइम पे बाबा हरभजन वहाँ पे थे. और जब मैं उस रेजिमेंट में गया तो सब लोग बाहर से कोई ना आए, कौन माने थे, गुजराती आए, गुजराती आहू कर से. दैट वॉज अ ब्लडी साइकी. एनीवे अच्छा टेन्योर हुआ, बहुत अच्छा काम किया वहाँ से. वहाँ से सिक्किम से निकले, सीधे मेरी ट्रांसफर हुई इंडो तिब्बत बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर के पास. અચ્છા. ત્યાં सॉरी बरेली के पास जगह बनबासा, त्याँથી આગળ તમે જાઓ ત્યાં ऊपर बॉर्डर, याद चाइना बॉर्डर पर से. वहाँ से निकला तो ट्रांसफर हुई मेरी राजस्थान झांसी के पास तालबेट नाम की जगह. तो એમાં मीडियम मोटी मोटी तोप होती, वो तो छोटी तोपों ने मालिक तो मोटी तोप वो सिखाते तुमको सब, वो आ जाता है. ट्रेनिंग तो वही है, लेकिन ये कि ये गोला दूर जाता है, वो गोला इससे भी दूर जाता है. तो वो उधर रहा, वहाँ मेजर बना. वहाँ से फिर मेरे ट्रांसफर आई लेफ्टिनेंट कर्नल. आई वेंट टू इंडिया तिब्बत बॉर्डर, जो आजकल काफ़ी रोड बह गए हैं, शिमला से आगे जाते हो चाइना बॉर्डर पर. ये ત્યાં લેફ્ટનન્ટ કર્નલ હતો. ત્યાંથી પછી અમે નીચે રેજિમેન્ટથી ઉતર્યા, હું કેલકટા આવ્યો. नाम के लिए कैलकाटा. वाइफ वॉज देयर, इनको फिर झांसी से पकड़ के यहाँ ले आया. फिर मेरी जो ऑपरेशनल रोड था जिसमें अरुणाचल प्रदेश 13,000 फुट, 9,000 फुट, 11,000 फुट अमाउंट ऑफ बंकर्स कंस्ट्रक्ट किए वहाँ पे, जहाँ से 62 वॉर स्टार्ट हुआ था वो इलाके में. आम तो हिस्ट्री वाँचे लेते, पर वो यार तो यार अलग कैसे लड़े होंगे यार, रोड भी नहीं है. हमारे वक्त पर रोड न था. अब जाओ अब तो आपकी मोटरसाइकिल ऊपर तक जाएगी. दिस इज व्हाट माय प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड. मेरी जमीन है, मेरे जवान को तकलीफ हो रही है. पेलू ब्रिज बने थे गौटे का, अब बन गया वो ब्रिज. अबे 3 दिन लगते थे चाइना बॉर्डर में, अबे तो 6 कलाक में तारा सामने भेज जाए चाइनीज के सामने. सर दैट इज द ब्लडी मोरल बूस्टिंग यार हमको. ये खत्म हुआ वहाँ पे. और वहाँ से मेरा फिर प्रमोशन आया पंजाब बॉर्डर, ईस्ट वेस्ट वेस्ट ईस्ट ईस्ट. अच्छा पागल के साथ नॉर्थ चलता रहा, बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर. पंजाब में आया, पंजाब से फिर सडनली ऐसे बॉक्सिंग चल रही थी. तो जनरल साहब ब्रिगेडियर साहब बैठे थे, एक सीक्रेट मैसेज आया. अच्छा. मेरी टीम जीत रही थी बॉक्सिंग. तो ही आस्क्ड मी, फलनी कम हियर. चारों कमांडिंग ऑफिसर के एक तरह का 12 डब्बे आओ तुम. हम चारों कमांडिंग ऑफिसर, एक ब्रिगेड में 4 कमांडिंग ऑफिसर होते हैं ना, 4 रेजिमेंट होती है. तो मैं गया बाहर, कहता जेंटलमैन एनीबडी हैज गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. फरी अपने गाड़ा जब हाथ उभ्या करे वॉलंटियर. और ये तीनों बदमाश थे, इसमें एक मेरे साथ था पहले, लेकिन उसने हाथ बड़ा नहीं किया. कहता ये शिवाजी महाराज साले को करने दे, हाथ कटा. अच्छा तू गया था कब? मैंने उससे 7-8 साल रहा हूँ. ये जो सूबेदार मेजर को बुलाओ. सूबेदार मेरे को बुलाया. अब आपने नौकरी की? हाँ. अरे था पैकअप, बस खाली आटलू पैकअप. अब आखिर रेजिमेंट पैकअप करवाने 18 तोपों, 18 गाड़ियों, एक गन के ऊपर 7 गाड़ियाँ बड़ी बड़ी ने, रातों रात पैकिंग बांध बैन करें. हमें JNK के बॉर्डर पर, वाइफ को वहाँ छोड़ा, बच्चों को छोड़ा. इनका 6-7 दिन हमको मिले, वहाँ से मेरे को चढ़ा दिया ऊपर. એટલે ફરીથી તમે ફરીને પાછા ફરી કાશ્મીરમાં હું આવી ગયો, શ્રીનગરમાં. શ્રીનગર
જોજીલા પાસ, સોનામાર્ગ, ગુલમર્ગ, આપણા અમરનાથ યાત્રા જે બધી જિમ્મેવારી મારી હતી. અને દેટ વોઝ ધ 1990 से 1993 सब साहब वो खतरनाक टाइम होता. અને અમને ખબર જ તો जब हम जाइए ना तो साहब बी केयरफुल ना, कोई गोली कहीं से भी आ सकती. मीडिया इतना कंट्रोल करके रखा था. आदरणीय फारूक अब्दुल्ला साहब, आदरणीय मुफ्ती महमूद सब पहुंचे हुए साहब. ये दे वांटेड दिस स्टेट टू बी इस्लामाइजेशन. सॉरी मैं रिटायर होकर आपको जो बात सच है वो बोल रहा हूँ. राशन हमारा, डिफेंस हमारा, साला ये सब कुछ हम दे रहे हैं, भाषा उनकी. आर दे काफिर नहीं है, ये देशद्रोही नहीं ये लोग. दुख होता है साहब. और उनको फिर मदद करने वाला हमारी गवर्नमेंट जो भी उस वक्त की थी. लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? कश्मीर में आपने कश्मीर फाइल्स देखा आपने? अच्छा, बाद में फिर आप जम्मू कश्मीर में ही थे कि और किसी जगह? कश्मीर से जब मेरा टेन्योर खत्म हुआ तो मैं दिल्ली में गया. ओके. मैंने बोला भाई मारी फाइल गुम થઈ ગઈ છે આખી पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी. तो मुझे उस वक्त वो जनरल वो मेजर साहब जनरल प्लान बन गए थे. कहता उस वक्त थाले तेरे को बोला हाथ खड़ा मत कर, नेवर बी वॉलंटियर. तू ऐसा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं बेटा. तू काम अच्छा करेगा तो तेरे जवान भी अच्छा काम करेंगे. इट इज द टीम लीडर. द स्पीड ऑफ द टीम डिपेंड्स अपॉन द लीडर. हाउ इज देयर. तू अच्छा काम करता गया, तेरा एक भी जवान नहीं मरा आतंकवादियों के सामने. को मरेगा कैसे? मैं रात को सोते नहीं था. तो ये चीज़ें थी. फिर मेरे को उन्होंने ट्रांसफ़र किया. बाबा चुप रहे 2 महीना માટે તને હું મને સર ગુજરાત દે દો. फिर मैं गुजरात एयरफोर्स में आया ऑन डेपुटेशन. ત્યાંથી પછી અમને ખબર પડી કે એ તો ગલત પોસ્ટિંગ हो गई यार. ये तो बहुत फुल कर्नल है, એટલે सीनियर टू डीआईजी पुलिस, इसको यहाँ कहाँ ले आए. फिर मेरे को उन्होंने एनसीसी में भेजा है, बड़ोड़ा एनसीसी कमांडर. यहाँ से मैं रिटायर हुआ कि मैं आई वाज द कैडेट. जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन અહીંયા બધું હતો. मैं तो मेरी एनसीसी को मैंने टॉप कर दिया गुजरात में आने के बाद मेरे बच्चों को. એટલે તમે यहाँ रिटायर हुआ. રિટાયર તમે વડોદરામાં જ થયા. વડોદરા છે. બરાબર છે. આપણે વાતચીત દરમિયાન ઘણી બધી વખત તમે એક રેજિમેન્ટ શબ્દ વાપર્યો. કરેક્ટ. તો એ રેજિમેન્ટ એક્ઝેક્ટલી શું છે? सर अरे हाँ आई કેટલી કેટલી રેજિમેન્ટ હોય છે એનું એક્ઝેક્ટલી કામ? रेजिमेंट का मतलब आर्टिलरी में जो टैंक वाला है दे कॉल इट रेजिमेंट. ઓકે और जो पायदल वाला है ना 5 राजपुर, 2nd मराठा ने, वो उनको बटालियन बोलते हैं. ઓકે फॉर एग्जांपल मराठा के 20 बटालियन है, वो 20 बटालियन मिलकर एक रेजिमेंट बनती, समथिंग लाइक दैट. दे कॉल इट मराठा रेजिमेंट. एमનું रेजिमेंटल सेंटर એમનું બેલગામમાં છે. हम लोग रेजिमेंटल है. ये अंग्रेजों के जमाना से चलता रहे. वी कैन डू नथिंग दो इट इज लाइक अ बटालियन ओनली. પણ અમારી મોટી મોટી તોપો હોય છે તો દે કોલ ઇટ રેજિમેન્ટ. અને એક રેજિમેન્ટમાં 3 બેટરી હોય છે. એટલે ઇન્ફન્ટ્રીમાં કંપની બોલે, એક કંપની, બી કંપની, सी कंपनी. हमारा 3 बैटरी होते हैं. एक बैटरी में 6 तोहफे होती हैं. उनका एम्यूनिशन अलग. लंगर, कुक हाउस, बिकॉज इंडिपेंडेंट यू कैन टेल देम, सेंड देम. कहाँ जाना है? श्रीलंका जाना है, जाओ भी, तेरी बैटरी जाएगी, तुम दोनों इधर रहोगे. सो दे आर सेल्फ सफिशिएंट. सो दैट इज रेजिमेंट. और जब एक फाइटिंग फोर्स होता है विच कम्स अंडर ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के अंदर 3 या 4 इन्फेंट्री बटालियन होगी. एक बटालियन में 800 से 900 छोकरा હોય છે. एक बटालियन में 5 राजपूत, मराठा, गोरखा, जो भी है जे कले, मान लो 4 बटालियन, उनके साथ ये उस ब्रिगेडियर के अंडर है. तो अब एक आर्टिलरी रेजिमेंट उसके साथ हो गई एडिशनल फायर सपोर्ट માટે. हाँ तो पायदल से ऊपर जाओ. विक्रम बत्रा जैसे बेचारे ऊपर गए, वो आर्टिलरी वाला ऑफिसर साथ में जाता है, गन्स तो नीचे से फायर करेंगे ना, जो भी बताओगे वैसे. तो उनके साथ हमारे 3-4 आंखें जाती है, हमारी बंदे जाते हैं उनके इन्फंट्री को, पायदल ना जोड़े. तो ये होता है रेजिमेंट का. और आर्टिलरी ब्रिगेड, फिर उसके ऊपर 3 ब्रिगेड, इन्फंट्री 3 ब्रिगेड થઈ ગયા, એના ઉપર એક ડિવિઝન થાય. जैसे અમદાવાદમાં 11 ડિવ ઇન્ફન્ટ્રી, 3 ઇન્ફન્ટ્રી બ્રિગેડ, एक आर्टिलरी ब्रिगेड है જે हमारा इमीडिएट माय बाप. એમના अंडर 4 के 5 के 3 रेजिमेंट डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेशनल रोल. ये रेजिमेंट देन तू जा रहा है, तेरे साथ में एक रेजिमेंट दूँ, इसके साथ एक रेजिमेंट, और राजपूतों के साथ एक बैटरी जाएगी, समथिंग लाइक दैट. तो ये सिस्टम हम फॉलो करते हैं. सो दैट डायरेक्ट फायर सपोर्ट इज ऑल्सो अवेलेबल. टैंक वाले भी जाएंगे, उसको भी रेजिमेंट बोलते हैं. और टैंक वाले कहाँ इस्तेमाल होते हैं? पंजाब में, राजस्थान सेक्टर, जहाँ प्लेन्स વધારે છે. એટલે અલગ અલગ જગ્યા વિસ્તાર પ્રમાણે અલગ અલગ રેજિમેન્ટ. हर एक का ऑपरेशनल रोल को देख करके, उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी देख करके, वो इन्फंट्री तो कहीं भी जाएगा बेचारा. अब इन्फंट्री हर वक्त दौड़ नहीं सकता ना. तभी प्लेन्स में गया, टैंक निकल जाए,
એના પાછળ ઇન્ફન્ટ્રી કેવી દોડે, તો उसको क्या चाहिए, APC, મેકેનાઇઝ ઇન્ફન્ટ્રી કરી દે. એક મેક ઇન્ફન્ટ્રીમાં એક APCમાં 10 છોકરો બેસી જાય છે હથિયાર લઈને. એટલે ત્યાં टैंक गई, टैंक के साथ ये गया, ये उतरते उसको घेर लेते, संभाल लेते हैं. ઓકે डिपेंडिंग अपॉन द रोड. રૂલ ઓકે. અને એના ઓપરેશન કેવી રીતે થતા એ બધા યુનિટમાં જોઈન્ટ સર્વિસીસમાં અમને બધાને સિખાડે છે कि हाउ टू गो अबाउट इट. यहाँ तक डॉक्टर्स का भी ट्रेनिंग होता है साहब, वो भी हमारे साथ होते हैं. ભારતીય આર્મીમાં ડૉક્ટરોની પણ ટ્રેનિંગ ट्रेनिंग થાય છે, ફિઝિકલી ફિટનેસ એમનું પણ થાય છે. જે FMC पूना में है, देयर इज नो शॉर्टकट. वो तो भगवान मानते हैं हम डॉक्टर को. कारगिल वॉर में अगर डॉक्टर है तो वो 2 कदम और आगे जाएगा, 2 किलोमीटर. कैप्टन साहब हमारे साथ हैं, मेडिकल AMC आर्मी मेडिकल कोर वाले. इट्स अ बिग मोरल बूस्टिंग यार. इसलिए आप देखो जब लड़ाई लाइक वॉर सिचुएशन में 100% ડોક્ટર્સ આર દેર ઓન ટોપ, એટલે ફ્રન્ટ લાઇનમાં. પછી પાછળ મોટા મોટા હોસ્પિટલો તેવા જોઈએ, ત્યાં બધા સિનિયર કર્નલ સર્જન્સ હોય તેવા જોઈએ. તો એ હોતા. તો હવે આપણે ફ્રન્ટ પર આવી જઈએ. 1971નું જે ઇન્ડો પાક વોર થયું એના વિશે થોડી ચર્ચા કરીએ. Yeah. તો એની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ હતી 1971માં? 1971માં શું થયું એકચ્યુઅલી, મુજીબુર રહેમાન તમે ઓળખો છો બધા, હા, એ ઈસ્ટમાં હતા, એટલે ઈસ્ટ પાકિસ્તાનમાં. પાકિસ્તાન હાલનું અને એ વોઝ વેરી પોપ્યુલર. અને જેની અત્યારે છોકરી અત્યારે જ प्राइम मिनिस्टर से ध्यान. हाँ. अब वो इतना पॉपुलर था कि वहाँ इलेक्शन के अंदर ये वेस्ट पाकिस्तान वाले इनको बोंगो मुस्लिम बोलते, बोंगो बंगाली मुस्लिम, अच्छा, काला मुस्लिम है साला, ये तुच्छ नज़र से हमने જોયે છે. ઓકે. जिन्ना साहब ने कर तो दिया ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, but these people वेस्ट पाकिस्तान they refuse to accept them as a पाकिस्तान. अगर रुपये का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता था, ईस्ट पाकिस्तान में. सबसे ज़्यादा वहाँ जो प्रोडक्शन होता था उनको मेट कर वहाँ पे उसका ज़्यादा प्रॉफिट आता था. वो बोले यार हम तो आपकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, तो आप हमारा प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाते. नो 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 शट अप, एने के अंदर पकड़े मुके. दे डिड लाइक मुजीबुर रहमान, जबकि थम्पिंग मेजोरिटी मार. અને પછી અહીંયા ટિક્કા ખાન અહીંયા આવીને દે સ્ટાર્ટેડ કિલિંગ યોર ઓન મુસ્લિમ્સ. क्या है इनका कैरेक्टर यार. दे स्टार्टेड किलिंग देयर ओन मुस्लिम मैन. रेप, मर्डर, थ्रो देम इन द हुगली. हमारी 59 माउंटेन रेजिमेंट वॉज देयर. वो बोलते कि सर बहुत खतरनाक मामला था ये. હું તો વેસ્ટર્ન બોર્ડર પર હતો એ વખતે. આ લોકો ઈસ્ટર્ન મારા જે 59 હું સિક્કિમમાં ગયો તે ત્યાં હતી. तो मैं हमने पूछा यार, तो कहता सर यहाँ बहुत बुरी हालत है, यहाँ तो बहुत बुरी हालत है. फिर इंदिरा गांधी रियलाइज कि रोज ना साले 5 लाख 10 लाख 6,000 રોજ ઇન્ફિલ્ટ્રેશન થાય છે, એમને ખાવા ક્યાંથી આપવાનું આપણે. શી વેન્ટ રાઉન્ડ ટુ ઓલ. શી વેન્ટ ટુ નિક્સન ઓલ્સો પ્રેસિડેન્ટ. નિક્સનમાં હલકટ માણસ હતો, वो ना डबल स्टैंडर्ड वाला मानस હતો. ना इतने कत्लेआम हो रही है बट ही वॉज सपोर्टिंग पाकिस्तान. उस वक्त अमेरिका वॉज प्रो पाकिस्तान एंड एंटी इंडिया, क्योंकि नेहरू फैमिली वॉज प्रो रशिया. अब इस चक्कर में शी कॉल्ड माणिक शाह. दैट टाइम माणिक शाह वॉज जनरल. એ આપણે ગુજરાતનું ગૌરવ છે માણેક શાહ. અને એમને બોલાવ્યા. એપ્રિલની વાત છે કે he said, Sam, I want you to go for war. He said, don't do the mistake. શ્યામ આપણા પોકેટમાં હંમેશા રેઝિગ્નેશન રાખતો હતો. अच्छा, ઓલવેઝ યુઝ ટુ કીપ એ રેઝિગ્નેશન. અને આવા ગાંડા જોડે રહેવાનું તો પછી શું કરીએ. એન્ડ શી વોઝ ઓલવેઝ વરીડ કે આ ટેક ઓવર ना કરી ले, अयूब की तरह, टिक्का खान या याया खान की तरह टेक ओवर तो नहीं करेगा ये. याया खान वॉज आर्मी चीफ देयर. तो उसने बोला गिव मी सम टाइम. इट इज नॉट पॉसिबल बट आई एश्योर यू वी विल लूज. બધા મિનિસ્ટર ત્યાં બેહેલા, જગજીવન રામ ડિફેન્સ, પછી ફકરુદ્દીન અલી બધા एग्रीकल्चर. सैम ऐसे मत बोलो जाओ. कहता साहब एक सदर बाजार में जाके खाने वाली बात है क्या. इट रिक्वायर्स प्रिपरेशन. इज इट व्हाट प्रिपरेशन. इज इट गिव मी सम टाइम, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू. क्योंकि सबके सामने बेइज्जत नहीं होनी चाहिए ना. वेरी प्रोटोकॉल. એ રૂમમાં લઈને બધું એને કીધું. આજ એક ટેન્ક રેજિમેન્ટમાં 45 ટેન્ક્સ હોય છે, મારા પાસે ખાલી ઓપરેશન 6 કે 7 છે. શું વાત કરો છો. કે હા ભાઈ તમે પૈસા આપો ને. એના પાર્ટ્સ ક્યાંથી આવતે. તમે રશિયન ટેન્ક લાવો, કોઈ બી ટેન્ક લો, એના પાર્ટ્સ એ લોકો સાલા પાર્ટ્સ નહોતા આપતા. તમે બોફોર્સથી પણ સાલા એના પાર્ટ્સ ના આપે. અમે શું કરીએ, અમને 6 રેજિમેન્ટ જોઈએ તો અમે 7 રેજિમેન્ટ લઈએ.
એ રેજીમેન્ટ 18 એટલે 18 गन्ना પછી સ્પેર્સ આપણે આમાં રિપેરમાં નાખવાના. इज दिस द वे? या मेरा कंट्री इतना उल्लू का पट्टा है कि नहीं बना सकता? आज सब बन रहा है. वही कंट्री है, वही इंजीनियर है, वही इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, सब वही कर रहे हैं. तब तो पहले क्यों नहीं किया? यू शॉक्ड. બધું આપણે બહારથી લાવવાનું એટલે 1 રૂપિયાની કિંમત આપ 10 રૂપિયામાં લા રહે હો. કોના પૈસા ભરે છે ખબર પડી ને હવે. દેટ વોઝ ધ બડી ટાઈમ. તો ही टुक. आई विल गो, आई विल नॉट डिसओबे, बट आई विल एश्योर यू दिस इज द टाइम. वहाँ बहुत रेन होता है, हुगली नदी के बहुत तरह हम बॉकडाउन हो जाएंगे और पाकिस्तान एयरफोर्स हमको पकड़ पकड़ के मारेगा. 47 नहीं, बहुत पूरी आर्मी दफा हो जाएगी. He said, then what do you want? He said, you just जाना है ना, leave it to me. वो नवंबर वो प्लान करिस, अक्टूबर नवंबर. तो ये 5-6 महीने मेरे को जो चाहिए दे दे. सब कुछ आया, सब कुछ आ गया. करा अब कैसे आया? और जब वो 3 दिसंबर की लड़ाई शुरू हुई तब तक तो यहाँ तक पानी आ गया. तो ही इन्फॉर्म जनरल जैकब फ्रॉम दिल्ली. जैकब जस्ट इन्फॉर्म मैडम that I am going in. परमिशन नहीं, मे आई गो ना, परमिशन नहीं, मारा बेटो चढ़ी हुए हो. एंड दैन बड़ी स्प्लैट ऑफ वॉर. भाई ऐसा किया पूछो मत. ये सारे नंगे का पकड़ पकड़ के इनको मारे हमने पकड़ के. अब ये ईस्ट में हो गया तो याया खान सोचा यार वेस्ट में शुरू करते, कारण કે વેસ્ટમાં આ લોકો ઓછા હશે એટલે શકરગઢમાં અને અમારા ઇલાકામાં ડવ ઇટ્સ લાઈક અ ટેક્ટિક. वो बोलते ना बैटल टैक्टिक्स. तो वो हम भी तैयार थे, ऐसी बात नहीं, बट फौज कम थी, पूरा एयरफोर्स इस तरफ था. इसलिए आपने वो बॉर्डर पिक्चर भी देखी. हवाई जहाज लेट आया रात को, लेकिन फिर भी जवान है. 24 बटालियन की या 23 पंजाब के, 23 पंजाब वाले जिसमें हमारे अहमदाबाद का लड़का है, वो सब लोग वहीं पे थे. उसका कमांडिंग ऑफिसर कौन बटालियन का? मुसलमान. लड़ने वाला कौन? जो आपने बॉर्डर पिक्चर देखी वो सरदार. अपनी कंपनी उसको ऑर्डर मिले तो यू फॉल बैक. इट्स नथिंग डूइंग. खालसा मर जाएगा सरदार, लेकिन पीछे नहीं आएगा. और सुबह फिर जैसे ही सूरज की किरण निकली एयरफोर्स आ गया, धमाधम फायर किया उनको. अब ऐसे पागल की तरह उनको टैंक लेके आ गए. हमें लोग को शू કર્યા? वी हैव खाने का मेस्टिन. आ लोग मेस्टिन में ग्रेनेड रख दिया. ग्रेनेड એટલે बॉम्ब, उसको बाहर रख दिया और ऐसे डाल दिया. टैंक आ रही है, एक टैंक आगे उड़ गया, उसके अंदर असली एंटी टैंक माइन था. तो डर गए, साले ये पूरा माइन फील्ड है क्या? ये सी द ब्रेन ऑफ दैट कंपनी कमांडर. આપણા પાસે માઇન્સ પણ સફિશિયન્ટ નહોતા. હાઉ કેન યુ ફાઇટ ડેઝર્ટ બેટલ વિદાઉટ માઇન્સ, પંજાબ બેટલ વિદાઉટ માઇન્સ? યુ મસ્ટ गेट अर्ली वार्निंग. પણ આ લોકો લડ્યા बेचारा. खाली हमारे 2 ही जवान शहीद हुए, बाकी उनके कितने हुए? उनके कितने टैंक्स बर्बाद हो गए? આ એક જ દિવસની વાત છે. આ 3 ડિસેમ્બર અને 6 ડિસેમ્બરથી જ આ છે. અમારે ત્યાં બીજા સેક્ટરમાં છે, કોઈ શકરગઢ સેક્ટર है, છમ સેક્ટર है, ઓકે, ઉપરા આ બધા સેક્ટરમાં વોર લાઈક સિચ્યુએશન. આઈ વોઝ ઇન છમ. પણ આ સેક્ટરની મને ખબર છે કે મારા રેजिमेंटल ऑफिसर જ્યાં ફ્રેન્ડ હોય પોસ્ટેડ, કારણ એક આર્ટલરી વાત આ 23 રેजिमेंट ને કલુસ રેजिमेंट મેં કલુસ. તો પછી વોર પછી અમને બધી ખબર પડે કે યાર दिस इज व्हाट वी गॉन थ्रू. सो एक वो 71 वॉर का अनफॉर्चुनेट पार्ट स्विच है साहब. ठीक है, 13 दिन की लड़ाई. आज तक मुझे नहीं पता मैंने रात को खाना कहाँ खाया, दिन में खाना कहाँ खाया. आई यूज्ड टू रन और अ वॉक. કારણ કે એ જમાનામાં શેલિંગ થાય એટલે બધું લાઈન તૂટી જાય, ટેલિફોન લાઈન, એટલે આઈ કાન્ટ ટોક ટુ યુ. તો દેન વિલ સે યાર યુ ગો ये तो इन्फॉर्मेशन आ टारगेट पर फायरिंग करવું છે. પણ તને હું કહું તારે તું फायरिंग करते ना, तारा नट छो तो पहुँचे. जब तक मैं तेरे को बोलूँगा नहीं, तू वहाँ से ब्रिगेडियर बोलता था बेटा उसको जाके बता के आ जा, तुम उसको जाके बताओ. तो हम जितने यंग ऑफिसर थे लिटरली यार पर डे 10 से 12 किलोमीटर में दौड़ता था आरामથી. તમે કીધું એ પ્રમાણે એ વખતે ઘણી બધી ચેલેન્જીસ વાળી સિચ્યુએશન આવી હશે. તો એવી કઈ સિચ્યુએશન હતી 1971ના એ 71 तो साहब नो बडी वॉज नोइंग. જ્યારે 3 तारीख को शाम को लड़ाई हुई, आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग द पे. એ જવાનો पे બેંકથી લાવવાની અને આપણે જવાનોને આપવાનો. तेरे अंडर 10 जवान है तो तू 10 जवान का पैसा लेगा, बॉर्डर पोस्ट पे जा, तू पोस्ट पे जा. से तो शेलिंग शुरू हो गया 4:10 पे, तो ऑल इंडिया वेस्टर्न बॉर्डर पे. तब सीओ साहब ने ऊपर से इतना, सीओ साहब में ऊपर रहता था बंकर में, जैसे बेटा क्लोज, पैसा यहाँ तिजोरी में ले आ ऊपर. तो फटाफट पैसा क्लोज करके तिजोरी में दे दिया. दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ कि शेलिंग થાય છે
કહેના બડા આસાને પણ ડર લગા. આપણે કોઈ જો વોર જોઈ નથી, વોર સાંભળ્યું છે. हमको बैटल इनॉकुलेशन कराते हैं. व्हाट इज बैटल इनॉकुलेशन? ये फरेक्ट इंडिया પણ કરાવે, मद्रास में कराया हमने, इंडियन मिलिट्री एकेडमी दे रहा था. उसमें क्या ऊपर से मशीन गन फायर करती है और नीचे से हम जाते हैं. हाँ, हाथ ऊपर नहीं करने का, वो सामने वाला मशीन में उतर फायर करता है, आप पीछे से डाला, उधर गोले गिरते हैं, इधर गोले गिरते हैं. यू गेट अ फीलिंग ऑफ वॉर. उसको बोलते हैं बैटल इनॉकुलेशन. ये हमने आते, बट दैट इज सेफ्टी को मद्देनजर रखते हो कि अपना जवान छोकरा मरी ना जाए. અહીંયા શું જેવું यहाँ तो कोई किसी का लेवा देवा कुछ नहीं वहाँ पे. तो ये 71 वॉर का, उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एपिसोड हो गया. 3 तारीख को ललियाली अब J707 पोस्ट पे हमला हुआ और 6 तारीख को ललियाली पोस्ट पे हमला हुआ. और वो शाम को 4 बजे शर्मा जी बोल रहे थे, लेफ्टिनेंट साहब नया नया आया था, उसको सीओ बनाया. जैसे फल्ली सर लाइन चल रही थी हमारी, ऐसे टेलीफोन वाले, आई कैन सी 30 to 40 पाकिस्तानी वो पिट्ठू उतार रहे हैं. अभी इतना एक्सपीरियंस मेरे को भी नहीं था कि वॉर में क्या पिट्ठू क्यों उतारा है, दैट मीन्स फाइनल असॉल्ट. मैंने सीओ को बताया, मैंने कहा सर वो मैसेज आया है शर्मा का. इसे बेटे कितना बंदे बोले 30, बेटा मोर देन प्लेटून इज गोइंग. एक प्लेटून में 30 मानस हो, बीजे प्लेटून पर आओ से आम थे, दैट मीन शाम को कुछ ना कुछ करने वाले ऐसा लगा. वो बोलते नहीं नहीं यार उनका ट्रेनिंग चल रहा है, हमारा भी ट्रेनिंग चल रहा था, उनका भी ट्रेनिंग चल रहा है. तो सीनियर ऑफिसर्स ने, ही टोल्ड ब्रिगेडियर, ही टोल्ड देम, शाम को जो अंधेरा हुआ इस पोस्ट पे हमला हुआ. तब ये ऑफिसर बोल रहा है नहीं, 707 पोस्ट पर इस पोस्ट पे हमला हुआ था. लेफ्टिनेंट शर्मा वाज देयर और एक जीपीओ बोलते हैं गन पोजीशन ऑफिसर, जो सेकंड लेफ्टिनेंट प्रमोद था, जो मैंने हिस्ट्री लिखी उसमें. तो वो उसको बताता है, प्रमोद SOS रेड 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 फायर कर. રેડ 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 મીન તું ત્યાં બેસો એટલે તારા ઉપર જ ફાયરિંગ કરવાનું. પણ આટલા લોકો નજીક આવી ગયા હતા. હવે આર્ટલરી ફાયરિંગ ऐसा नहीं होता ना, वो तो यूं भरूच जाए છે એ ત્યારે તો ધમાધમ ગોલે કરે. ઉધર કેપ્ટન સાઈ વોઝ ઇન લલિયાલી પોસ્ટ, એના પર પણ હુમલો થયો. તો ही वॉज अ वेरी मेच्योर्ड मैन, वेरी सीनियर कैप्टन, मेच्योर्ड. कंपनी कमांडर वगैरह लड़ता था, लेट मी टेल यू. नेचुरली यार फर्स्ट टाइम जब जाता है देखना आता है. कोई लोग तो ऐसे ही रिटायर हो गए बिना गोली खाए हुए या बिना फीलिंग के वहाँ. ठीक है, दैट इज देयर लक, नो हार्म, ऐसा कहीं होंगे. तो वो उसने उसको कंट्रोल किया था बिना एम्यूनिशन. अब एक बैटरी में 1200 गोला है, તમે એક રાતે ફાયરિંગ કરો તો બીજા દિવસે શું કરવાનું? इतनी डेड बॉडी, 67 से ऊपर डेड बॉडीज थी उधर भी इधर भी, दोनों पोस्ट के ऊपर. और नीचे से मार खा रहे थे दूसरी बटालियन. लेकिन हमारी बटालियन, दोनों बटालियन को, 8 जैकले बटालियन को हमने ऐसा सपोर्ट दिया, इसलिए हमको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, जिसको बैटल ऑनर बोलते हैं, टाइटल ललियाली एंड पिकेट 707, ये आपने ये ना, ये आप देख रहे हो, इसके ऊपर बैटल का नाम लिखा होता है कि मेरे बेटे का फोटो इस पर ललियाली लिखा होगा. ये ऑनर है हम फौजियों के लिए कि आप ललियाली पिकेट, એટલે મારા ગાડી ઉપર લખેલું છે बैटल ऑनर रेजिमेंट, आज ये लखनऊ जो हमारा गाड़ी ऊपर. तो फिर अब उनका एम्यूनिशन ख़त्म हो गया. नाउ कमांडिंग ऑफिसर ने बुलाया, कहते बेटे लोडिंग करो. मैं, कैप्टन धनराज और बाकी जो अब बंदे नहीं थे, तो अखनूर गांव में गया, गांव के मुखिया को बोला 10-12 बच्चे वहाँ से ले आए. तो हाथ कटने लगे, साहब एम्यूनिशन बॉक्स लोड करो, मजा नहीं. 56 किलो एक वजन हो, 56 किलो हाई कॉन्टेक्ट लोडिंग किया. 7 गाड़ी लोड की, ऑर्डर दिया, कौन ले जाएगा इस कॉन्वॉय को? तो मैं बोला मैं, मेरी बैटरी है सर, आई वॉज द सेकंड लेफ्टिनेंट दिस बैटरी, आई नो द रूट, कहाँ किधर. शट अप, कीप क्वाइट, स्टैंड आउटसाइड. कैप्टन बारी को बुलाया. जैसे बारी तू भी तो इस सेक्टर में था 1965 में, लोगों वॉलेंटियर थे. अब्दुल बारी इज अ मुस्लिम गाय, वॉलेंटियर થઈને અમારા પલટનમાં ફરી આવ્યો. तो सर मैंने हमारा पलटन 65 वॉर के बाद अगेन ही केम इन 71 वॉर. तो उसने बोला कि सर मैं जाता हूँ, ये तो गधा है, ये पता नहीं कहाँ खड़ा हो जाएगा. ठीक है. तो मुझे 3-3:15 को बुलाया. लुक आफ्टर कमांड पोस्ट, एटले कंट्रोल रूम, कंप्लीट फायरिंग एंड बारी को व्हीकल निकले. जब तक वो सुबह नीचे जाते हैं अखनूर से, सुंदरबनी अखनूर, अखनूर से नीचे जब छम ब्रिज पे जा रहे थे, तब तक सीओ साहब ने मुझे दोबारा बताया, कहता बेटा वो गाड़ियाँ रोक. सर क्या हो गया? कहता है वो छम इज विद पाकिस्तान, द ब्रिज इज विद पाकिस्तान.
बोला कैसे कोई कम्युनिकेशन नहीं क्यों. પછી એ વખત एक डेल्टा 5 नाम का सेट होता था. मैं ऊपर चढ़ गया पेड़ पे, मैं और एक ऑपरेटर कुरुप था. हम पेड़ पर चढ़ गए, वहाँ से मिला. आई पास अ मैसेज टू પ્રકાશ પાંડે, ઇઝ ઓલ્સો મહારાષ્ટ્રીયન. એ વખત અમે મહારાષ્ટ્રી લોકો અમારી લેંગ્વેજ બનાવી મૂકી છે कि भोपड़ा थांबो वो सब करके ऑल दिस थिंग. उसने कहता कहा मतलब 7 गाड़ियाँ गेला थांबो बारिश आता है. हम लोग जानते इतने छोटा सा फौज है अपने फैमिली. उसने फिर वहाँ से मोटरसाइकिल लेकर के ब्रिज के पास वो सातों गाड़ियाँ कानेटकर को बताया. कानेटकर इज नो मोर, ही डाइड. उसने उस गाड़ियों को रोके. तो उस वक्त तो ये कॉनवे ब्रिज क्रॉस कर रहा था. ત્યાં से फायरिंग एक ब्रिज हमारी गाड़ी क्रॉस करे. हजू પણ ત્યાં बॉर्डर पर છે एक गाड़ी हमारे, उसको जला दिया उन्होंने, अंगाड़ा उसका है. और पीछे वाली गाड़ी जो ड्राइवर था उसको बोला है फायरिंग हो रहा है, वो रिवर्स मारा, रिवर्स मारा, रिवर्स मारा, रिवर्स. अब वो जो पहले वाली गाड़ी में था बंदा, ड्राइवर होशियार હતો, 65 वॉर वेटरन હતો. ये लोगों ने खबर थी वॉर, हमने तो हम तो बच्चे थे यार, हम तो सब शायद हो सकता मैं उसी गाड़ी पे होऊंगा सबसे पहले, तो आज आपके सामने जीवता नहीं होता. सी दीज आर ऑल द टेक्निक ऑल दिस थिंग. ये बंदो सरकंडा में अपना हथियार लेके भाग गया. सर 6-7 दिन के बाद होठ इतने बड़े बड़े होने के बाद ऊपर से आ रहा था. हमने तो डिक्लेयर किया था कि अशोक खान इज नो मोर, डेड. ये गाड़ियाँ पीछे आई. अब ये सिर्फ 6 गाड़ी, उसमें 156 बॉम्ब लोड बम बम पाकिस्तान ने उड़ा दिया. ठीक है, हम इन गाड़ियों को दोबारा यहाँ पे वापस ले आए. तो मेरे को सीओ ने बोला तो यहाँ पे जा कप्पा गला पे. और कप्पा गला इज द प्लेस. वहाँ पे हमारी एक बैटरी ऑलरेडी आगे डिप्लॉयड थी, 6 तोपा हमारी डिप्लॉय. ત્યાં हमारा खच्चर उड़ा पड़ा था. ત્યાંથી એક ખચ્ચર के ऊपर 3 बॉम्ब इधर 3 बॉम्ब इधर. अब બધું રાત્રે હા સાહેબ, કોઈ લાઇટ નહીં, કશું નહીં. પાણી છે કે નહીં ખબર નહીં, જમવાનું છે કે નહીં ખબર નહીં. वी वेट. उसको फटाफट एम्यूनिशन निकाला, लोड किया. माइसेल, अब्दुल बारी, मेजर खारा था, बाकी तो एक लेफ्टिनेंट कैप्टन शर्मा आगे बैठे थे. एनीवे, तो हम लोग उनको वहाँ से एम्यूनिशन लेके नीचे उतार के मुनव्वर तवीब, ठंडी डिसेम्बर के टाइम, એટલે આપણે અંદર પાણીમાં એને લઈ જવાનું. એટલે पानी से मुझे तो रास्ता पता था, ब्रिगेडियर खारा को भी पता, सबको पता था. हम तो वॉर में रेकी करते हैं, हम रेकी रात को करते ज़्यादा, कि रात में क्यों खबर पड़े આપણને. ત્યાં જઈને ગયા તો फायरिंग शुरू किया हमारे सूबेदार नंबियार ने. वो यार अबे तुमको साला एम्यूनिशन देने तेरी माँ तेरी बहन बहुत गाली निकाली. तो नंबियार साहब समझे क्या तो कैप्टन साहब थे अपने भड़नेकर साहब, भले सर वणक्कम. मैं क्या साला क्यों फायर कर रहा है मेरे को ऊपर. एम्यूनिशन फटाफट अनलोड किए, ये किए, दोबारा भेजे, क्योंकि 10-12 खच्चर थे. फटाफट एक खच्चर के ऊपर 6 गोले आते. फिर भी हम टॉप लोड अलाउड नहीं थे, हम टॉप लोड भी लेके गए. टॉप लोडेड थे, एक बॉम्ब ऊपर, 7 बॉम्ब, 12 खच्चर, कम से कम 12 बॉम्ब एक्स्ट्रा तो मिल गए उनको. उनकी जान तो बच गई आज. ये मेरा बहुत बिटर एक्सपीरियंस है. वॉर शेलिंग चल रहा है, खच्चर भाग रही है, खच्चर फ्रस्ट्रेट हो रही है, क्यों खेलेंगे कहाँ गिरे, वो डर जाते. घोड़ा भी डर, आपकी शादी में घोड़ा भी तो फटाका फोड़ा था, वो भी पता नहीं जब मैं राजा को गिरा देगा. दैट वॉज माई वर्स्ट. हाउ नो हाउ वॉज सर्वेट. बट મારા બધા બેટરીના જવાન, ये जो भी जवान थे तकरीबन 70-80 सब बच गए. एम्यूनिशन आ गया, खुश हो गए. हमको खाना नहीं चाहिए, हमको एम्यूनिशन दो, सालों को कूट के मारते हैं. तो फ्रॉम देयर द रेजिमेंट बोर्ड, उनकी जो बैटरी हमने मूव कराई, एक इस रीच पे गई, दूसरे रीच पे गई. और ऐसा होता है जब फायरिंग होता है ना, मोटर, वो जो मोटर देखो वो छोटी वाली मोटर अंदर है, वो ऊपर से लोड करते हैं, वही थी हमारे पास. उसके ऐसे ये होता है, जब बॉल शेल अंदर आता है, बम ऊपर निकल जाता है. अब ऐसे कितने बार वो करेंगे, वो भी फायरिंग पे नहीं, जब आपने फायरिंग में टक टक करिए. तो रातों रात मेरे को बोला SOS सर, फायरिंग पिन खत्म होने आए, टूटने लगी. एक गन के ऊपर एक स्पेयर थी, वो भी टूट गई, ये भी टूट गई. मैं रातों रात मोटरसाइकिल लेकर निकलता था, नो लाइट्स. भगवान भरोसे यूं यूं देख करके आप सुंदरबनी आओ, OMC में जाओ, वहाँ से घूम करके आप उधमपुर आओ, लोगों से मेल मिलाप करो, लड़ाई सिचुएशन है, ले जा यार करके. तो ऐसे એમ, लेकिन આ તો પછી એને પહોંચાડું કેવી રીતે આગળ, મને ખબર છે, પણ મને ઓર્ડર તો આગળ નહીં જવાનો. तू यहाँ तक जाएगा, उधर का बंदा आएगा, उधर का बंदा, वो ठीक है, पुराना कल्चर है अपना. दैट इज विद टफ लाइफ. तीसरा इंसिडेंट ऑफ 71 वॉर, सीओ साहब ने फिर बोला, कहता बेटे जो पापा बैटरी है, 121 कॉन्गो बैटरी जिसका मैं, उनको वहाँ से शिफ्ट कर. ऑर्डर आया हुआ, उनको शिफ्ट करके अखनूर लिया. बहुत आगे डिप्लॉयड थे, 7 किलोमीटर का रेंज होता है.
मैं निकला, मेरे साथ एक सूबेदार साहब ओपन जीप थी, कहानी थी, रस्तों पर नहीं अलाउड नहीं कशू। पहला वो मेरे को डराए, कह रहे साहब क्यों जोर चला रहे हो, आराम चलो। वो साहब मेरी बेटी की शादी होनी है साहब, यू नो ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ वॉर, ये तो कल परसों ख़त्म हो जाएगा साहब, वो निकल चुके होंगे साहब, आप काहे कोई तकलीफ कर रहे हो साहब, पर हमें तो यंग ना हुक्म मिला એટલે काम करना है, तो दैट इज आवर ट्रेनिंग। जब तूने मुझे ऑर्डर दिया हुआ कमांडिंग ऑफिसर, तुझे मेरे पे फेथ है ना, इन्हें क्यों नहीं आप? तो मैं वहाँ से गया, मैं कहा साहब, वो मैं जब जा रहा था, नायक के राव का आदमी था हमारा, जो 65 वॉर का हीरो था, इसी रेजिमेंट का, 86 लाइट रेजिमेंट का। कहता साहब आप जा रहे हो? मैं कहा हाँ यार। कहता ये डेंजरस आदमी आपके साथ जा रहा है, बी वेरी केयरफुल। मैं क्यों यार? कहता काम नहीं करेगा, आपको ढीला कर देगा और आप पहुंच नहीं पाओगे और वहाँ पे 120 लोग मर जाएंगे साहब, शेलिंग होगा। पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई कर ले यहाँ आर्टिलरी छुपी हुई है। वो आप, मैं फिर क्या करूँ? उड़ा देना साले को। मैं कहा साहब वो अपनी यूनिट का सूबेदार है। कहता है साहब ऐसा कर, साले को उड़ा देना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मेरे को बोलता है। हम इंग्लिश वर्जन बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं चलते गया आगे, वो ढीले करते, बीच में एक मंदिर आता है दुर्गा माँ का, कप्पागला के पास। मैं उतर गया, दर्शन किया। मैं कहा साहब उतर आप, એને મને આટલી એક બોટલ આપી હતી, એમાં રમ હતી, અરે સાહેબ इसको पिला देना। बहुत सारो माणस હતો। ફોર મી હી વોઝ લાઈક અ ફાધર, 65 वॉर का नायक। હવે તો અહીંયા હવાલદાર એ વખતે એ વોઝ અબાઉટ ટુ रिटायर। तो मैंने हमारे सूबेदार साहब को बोला, मैं कहा आओ इधर साहब, साहब ड्यूटी पे। मैंने कहा पिता है उड़ा दूँ यहाँ पे एवरीथिंग, कोई मंदिर यहाँ भाई नहीं, कोई पुजारी यहाँ पे कुछ नहीं है। नीचे गाड़ी लोट पता नहीं फेंकी थी, तो मारी ना के साला हूँ गाड़ी नहीं जाए। फटाफट पी लिया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। साहब चलो, मैं आ गया, अभी अंदर का शिवाजी जाग गया, चल बैठ अभी गाड़ी में। हम जागे, वहाँ पे गए, इस बीच में गाड़ी खराब, मैं किसी की मोटरसाइकिल लेकर के वहाँ पहुँचा गन एरिया में, तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसा अर्ली मॉर्निंग की टाइम है, 3-4 बजे के टाइम है। क्या मैंने कहा मर गए साले सब, कहाँ? मैं गलत जो कि मैं पाकिस्तान में तो नहीं आ गया, कोई वहाँ बॉर्डर थोड़ी मार के। तो सर मैं जैसे थोड़ा सा निकल, थोड़ी सी लाइट हुई, आई सॉ 3 व्हीकल कमिंग, जनरल जसवंत सिंह, ब्रिगेडियर શ્રીનિવાસન અને એમનું રોવર જે બોલે ત્યાં। अच्छा, दांत सुखेला, दाढ़ी बधी हुई, खाया कि नहीं कौन जाने। जनरल, मेजर जनरल एंड ब्रिगेडियर, दे वर लिटरली वर्किंग लाइक ए मैसेंजर, यानी આપણે કહીએ ને પોસ્ટમેન જેવું। तो क्या कर रहा है इधर बेटा? मैंने कहा सर मैं इनको 1-to-1 कॉन्गो को शिफ्ट करने आया था। तो दे बस शिफ्टेड, बट एमनो जो बैटरी कमांडर थे, जो मेजर, इस रात को मैसेज पड़ा था, 1-to-1 कॉन्गो लाइट बैटरी टू मूव फोर्थविथ टू अखनूर। वो तो S-65 का हीरो था हमारा, उसने वो मेजर साहब सो गए थे, उनको जगाया नहीं, उसने अपने बैटरी को उठाया, भगाया, सबको वहाँ से लेके चला गया। तो बाद में मुझे मालूम पड़ा, खा रहा था, मैंने कहा रहा सर आप आ गए बन। कहता હું यहाँ से, એટલે અહીંથી મૂવ થઈને અમે તકરીબન 200 मीटर 300 मीटर पर वहाँ पहुँच गए। मूव ऑल मूव। मैं मेरे पास मेरे वो फटी हुई जीप थी, ये 3-4 गाड़ी थी। वहाँ पे ब्रिगेडियर ने मुझे पूछा, डू यू हैव समथिंग टू ईट? उस वक्त मेरे आँख में पानी आ गया। अच्छा, अब ब्रिगेडियर इज आस्किंग अ ब्लडी यंग कैप्टन। मैंने कहा सर वो 6-7 दिन पहले मेरे को पूड़ी दी थी, हमको फौज में पूड़ी मिलती है, यानी आपने पूरी के नमकीन पूड़ी और शक्करपारा दिया हुआ है और गुड़ दिया हुआ है, ये मेरे पास है। लेकिन सीओ ने बताया था तुम खाएगा नहीं जब तक, क्योंकि तू पकड़ा जाएगा, प्रिजनर होगा, तो तेरे पास ये पानी भी नहीं पिएगा, तो पानी किसी और का पिएगा। कोई स्टैटिक यूनिट उनके पास मिल जाता है, उनकी गाड़ी पानी की आती जाती रहती है। मैं कहा सर है। बोनेट पे हमें मुक्यू, इतना शेलिंग हुआ जो 200 मीटर पहले है। अगर हम वहाँ पे खाना खाते तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। આશરે કેટલા દિવસ આ યુદ્ધ ચાલ્યું હશે? हाँ, 3 તારીખથી સ્ટાર્ટ થયું, हमारे यहाँ 17 खत्म થયું અને 16મી है ईस्ट पाकिस्तान में, जबकि 93,000 प्रिजनर सरेंडर કર્યા છે। પાકિસ્તાનના જે આર્મીવાળાએ સરેન્ડર કર્યું, 93,000 प्रिजनर, ये रिकॉर्ड है, आप गूगल पे देख लो, इट इज़ गिवन। हमको भी पता नहीं था कितने हैं क्या, लेकिन हमने पकड़े, हमने हमारे मिला के उनके मिला के ईस्ट पाकिस्तान पे तो 93,000 प्रिजनर। પછી शिमला जरा करार थे उतारे बहुत मार खाया हमने। इंदिरा गांधी ने हमको, आई एम सॉरी आई डोंट नो व्हाट प्रेशर शी मस्ट बी हैविंग एज अ प्राइम मिनिस्टर, પણ
जो हमने जीता वो हमको छोड़ना पड़ा, जो उन्होंने जीता वो सालों ने छोड़ा नहीं। POK में बात करो कि તમે ગુજરાત સર ક્રિકમાં વાત કરો, ये एन भुट्टो ने लिटरली उल्लू बनाया। इस पे तो यूट्यूब पे आया भी हुआ है कि वो 5 मिनट उसका इंटरव्यू लेता है इंदिरा गांधी का, वो बोलता है मैं वहाँ जा कर के, मैं भी नया प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, तो वहाँ जा कर के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आर्मी वालों ने क्या बताया उसको, पाकिस्तान कि जितने भी प्रिजनर है सब प्रिजनर को तू लेके आएगा साले, नहीं तो हम तेरे को जिना है। ये पाकिस्तान के आर्मी ने, ये सब लिखा हुआ किताब है, मैं कोई नई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। बैड लक। अब क्या हुआ, 93,000 પ્રિઝનર આપણે આપ્યા, 617 લોકો એ લોકો અમારા પાછા મોકલ્યા આપણા। આજ સુધી 54 મરી ગયા, જીવતા છે ક્યાં ખબર નહીં। સૌથી વધારે તો આપણા એરફોર્સના ફાઇટર પાયલટ છે। સરબજીતને મારી નાખ્યો, કુલભૂષણને હજુ માર કરતા છે, ક્યાં એને મોકલ્યા હજુ, कहाँ फॉलो करते हैं ये लोग जिनेवा कन्वेंशन। पर हमने जिनेवा कन्वेंशन फॉलो किया, बिरयानी खिलाई, बैरक में सुलाया, हम लोग बाहर तंबू में सोते थे उनको। और इसका आपको पता होना चाहिए, फील्ड मार्शल माणेकशॉ જ્યારે ત્યાં ગયા એક डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम માટે, तो ही वॉज हैविंग अ लंच, तो उधर के जनरल साहब ने बोला कि सर हमारे कुछ सिविलियन फ्रेंड्स है, रिटायर्ड है, दे वांट टू से हेलो टू यू। ही सेड यस नो प्रॉब्लम। वो डेढ़ माणस હતો यार, ये पाकिस्तान में जईने खा के बाहर निकला, सब ने पगड़ी उसके पैर पर रख दी, 12 के 12 लोगों ने। पढ़ी ऐसे उसकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है। क्यों? कहते साहब आप लोगों ने हमारे बच्चों को कुरान दिया, बिरयानी खिलाई और इज्जत से यहाँ भेजा, कोई आपने टॉर्चर नहीं किया एज पर जिनेवा कन्वेंशन। और हमारे जो 617 आए हुए ना, उनकी कहानी सुनोगे डर लगता है सर, डर लगता है। ऐसे हाथ नीचे रख देंगे, नाखून निकाल देंगे, ठीक है ना, कान के अंदर स्क्रू ड्राइवर, ये सब मैंने पढ़ा है। कारगिल में मेरे कालिया को किया हुआ है। હું તો લીડરશિપની વાત કરું છું। बालाकोट થયું, एयरफोर्स अटैक बालाकोट में, आतंकवादियों को उड़ा दिया हमने, ठीक है, लेकिन हमारा एक बंदा पकड़ा गया। कौन? विंग कमांडर अभिनंदन। मोदी साहब ने एक ही मैसेज दिया अमेरिका को, भाई भला मानस ने कही दे 24 કલાક આપું છું, એને પાછો આપી દે। उसने बताया UAE को, UAE ने पाकिस्तान को बताया। एंड हमारे जो ब्रह्मोस है पाछा वाले, अभी वो ऑफिस रिटायर हो गया है, मैंने उसको पूछा अभी लास्ट मैंने किया था, कहता सर पहला 25 मिनट, પછી 15 મિનિટ, પછી 10 મિનિટનો ઓર્ડર રેડી, વિધિન 10 મિનિટ્સ યુ વિલ ફાયર। વી વેર રેડી ફોર 10 મિનિટ। અને જ્યારે બ્રહ્મોસ ફાયર થયા હતા, ઇસ્લામાબાદ ખતમ, કરાચી ખતમ, હરેક લેડ એક ઇધર એક ઇધર એક ઇધર। 1971 યુદ્ધની એના વાત કરું અત્યારે જે ઘટના બની है, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा अभी मैं, उसकी बात कर रहा। એર સ્ટ્રાઇક કરી अभी जब एयर स्ट्राइक किया हमने उसने, સીધા પરિવર્તન, લીડરશિપનું પરિવર્તન, એટલે પોલિટિકલ વિલ જેને આપણે રાજકીય ઈચ્છા શક્તિની વાત કરીએ, સીધા ડિફરન્સ યાર, બંને वही है, हथियार वही है, एयरक्राफ्ट वही है, फाइटर पायलट वही है, करके दिखाया नहीं दिखाया। અચ્છા, આપણે 1971ના ઇન્ડો પાક યુદ્ધની વાત કરીએ તો એક્ઝેક્ટલી એની વિનિંગ મોમેન્ટ શું હતી? विनिंग मूवमेंट क्या, एक कंट्री आपने बना दी, ईस्ट पाकिस्तान को आपने बांग्लादेश बना दिया, कितने लोगों को शपथ मिली उसको। ये फोटोग्राफ है तो सरेंडर साइन कर रहा, रो रहा था। व्हेन ही हैंडेड ओवर हिज पिस्टल टू जनरल जगजीत सिंह, रो रहा था। कितनी शर्म की बात है यार, इतने प्रिजनर तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं सरेंडर हुए, ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं सरेंडर। सो इंडियन आर्मी के पास क्या था? जो था उससे लड़ाई करी। यही कारगिल वॉर में हमारे जनरल मलिक साहब ने बोला, एक तुम्हारे जैसे इंटरव्यूअर को लड़की थी, he said to how you so many problem, how will you, कहते मेरे पास जो है उससे मैं लड़ूंगा। The what he said, the spirit is strong, the body is weak। इसका मतलब आया गुरकाली महाकाली हर हर महादेव। हमारे जवान का जो ट्रेनिंग ऐसा होता है, बेचारा चने खा लेगा, कुछ खा गए, कहता सब चने बिने छोड़ो, जरा एमुनिशन दे दो और 50-60 गोली और दे दो, सालों को ठोकने काम आएगा लास्ट में। वैसे तो यादव ने मारा उसको, लास्ट मिनट वो गन को उठा कर मर गया था, लेकिन मारा ठोक करके, ऑलमोस्ट डिवर डिक्लेयर डेड। बाद में उसको परमवीर चक्र आपने दिया हुआ है। બરાબર। तो ये कारगिल वॉर में तो इट्स अ डिफरेंट इशू।
એટલે 19 70 ડેઝ की લડાઈ, આ 13 દિવસની લડાઈ 71 વોરની, ઓકે આ 70 ડેઝની લડાઈ वन ऑफ द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, 9,000 फूट, 10,000 फूट, 13,000 फूट, 24,000 फूट पर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग हमारू करार है कारगिल वॉर में, सिविल शिमला करार 71 वॉर के बाद कि भाई जब बर्फ गिरता है हम पीछे गिर जाएंगे, तुम तुम्हारी पोस्ट छोड़ दो, हम हमारी पोस्ट छोड़ देंगे। कारगिल वॉर ने बात करूँ छू आ मारा बेटा कौन હતો એમનો ફિલ્ડ માર્શલ, અરે એમનો जनरल पाकिस्तान का उस वक्त, शायद मर गया अभी कुछ दिन पहले यार, उसने क्या किया, उनकी फौज आगे चढ़ा दी और वो बाद में जो बोले कि तो हमारे है ही नहीं, दे आर ऑल मुजाहिद, दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स। भाई नॉन स्टेट एक्टर्स है तो એમના पे बुक, એમના आइडेंटिटी कार्ड, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हमें गाड़ा છે, हमने खबर नहीं, ऑल सर्विंग सोल्जर, दैट इज अगेंस्ट द वो जिनेवा कन्वेंशन। जब हमारा कन्वेंशन हो गया है, यहाँ आवड़ा के 112 पोस्ट अपना ले लीधा था। जब वो कालिया गया पेट्रोलिंग में, किसी ने वो रिपोर्ट किया हमारे बकरवाल ने कि साहब ये तो रॉकेट लॉन्चर लेके जा रहे हैं, सीमेंट पैक लेके जा रहे हैं, तब हमने पेट्रोल भेजा तो इनको मार डाला। एनीवे 3 तारीख से लेकर के दुख की बात यह है, हवाई जहाज एयरफोर्स कब हुआ, 22 दिन के बाद। मुफ्त की रोटी खा रहा है तू। जनरल एयर मार्शल टिपरेस वॉज देयर, नेवी के थे हमारा 6, हम भूल गया उनका यार, और हमारा जनरल मलिक, तीनों अच्छे फ्रेंड थे, एक ही बैच वाले थे, आगे पीछे गुड अंडरस्टैंडिंग, तैयार था। पर नहीं रुक जाओ, 22 दिन के बाद डिसीजन मिला। उसके पहले कितने लोग मर गए, 523 के ऊपर अपना जवान शहीद थे गया। ठीक है, आपने 4-5 लोगों को परमवीर चक्र दिया, किसी को मारा से, तकरीबन 30-35 लोग हमारे हैं, उनको आपने, बट जो बंदा मर गया है, जो बंदा इंजर्ड हुआ है, या यादव जैसे आदमी जिनको परमवीर चक्र है, उसको दिल्ली जाके मालूम पड़ा कि वो जीव तो छू, तो इन्हें उठाए कौन ले गया? यही 4 आदमी है ना, जो बैंड मास्टर है, ये लंगर कमांडर है, ये जो हमारे धोबी बारबर, वही स्ट्रेचर लेके आते हैं, आपको नीचे मेडिकल तक ले जाते हैं, शेलिंग में ढाम बीच में मर जाता है, दूसरा आदमी उसको पकड़ता है, वो नीचे पहुंचाता है। ठीक है, आपने वो लड़ाई में नहीं था, लेकिन विवेक उठा कर रहा है। मेरे आपके माध्यम से ये कहना कि जे लोगों ने देश के माटे कुर्बानी करी है, क्या मेरी सरकार उनको कुछ नहीं दे सकती? 5 एकड़ की लैंड आप ही दे, लिस्ट लो, पलटन आपको पता है कौन सी पलटन ने हिस्सा लिया है, नाम दो, कुछ नहीं है तो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ नॉन टैक्सेबल, यार बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग। अगर राफेल आ गया तो आया ना, पहले नहीं था तुम्हारे पास पैसे, अभी रोड बन गया, नहीं था, नरेंद्र मोदी सब बना, अभी कहाँ से पैसे? तो ये बहुत गलत डिसीजन। अब तू मुझे बता, पहाड़ी के अंदर इफ यू फ्लाई फ्रॉम वडोदरा टू अहमदाबाद, तो हमने नीचे एक्सप्रेस वे नजर आता है, स्ट्रेट लाइन, तो वहां लाइन मार्क की है क्या? वो कहते हैं तो ये ट्रेन मारने से छोड़ी देना बाबा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एक बम तारा पड़ जाए, एक बम मारा पड़ हुआ है। એનો એક્ઝેક્ટલી માહોલ કેવો હતો કારગિલ વખતે? सर बहुत खतरनाक था, क्योंकि बंदे यूं चढ़े थे, कोई पाछळથી चढ़े थे, खड़े लोग थे, कोई आ वजह चढ़े थे, एंड मैक्सिमम कैजुअलिटी स्टॉप हो सकती थी अगर हवाई जहाज एयरफोर्स इस्तेमाल होता, नहीं किया, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। फिर ये भागे उधर उधर, मालूम पड़ा कि नहीं अभी तो फुल फ्लेज है। और हमारे यहाँ मैं देखा मेरे जवानों का સ્પિરિટ ઇઝ વેરી હાઈ। એમ કારગિલ વિશે તમે ઘણી બધી વાત કરી, એટલે હવે આપણે એ જાણીએ કે કારગિલની એક્ઝેક્ટલી સ્ટ્રેટેજી શું હતી એ વખતે? હા, બહુ સારું। ભારતીય આર્મી એ એવો કયો પ્લાન બનાવ્યો હતો કે આખું જે મિશન છે પાકિસ્તાન ફેલ થઈ ગયું? एब्सोल्युटली द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मुशर्रफ प्रोफेशनल था, सॉरी क्यों હતું कि देखो आप पठानकोट से जम्मू, जम्मू से आप सोनामर्ग, सोनामर्ग से आप जोजिला होते हुए ले जाते हो, एक ही रोड है, हम उसको 1 अल्फा बोलते हैं, अभी 1 डेल्टा हो गया है, बीजो रोड पर થઈ ગયો, હવે ले जाओ માટે। तो कहता है यार ये डोमिनेट करो, वंस यू डोमिनेट बाय ऑब्जर्वेशन एंड डोमिनेट बाय फायर। ऑब्जर्वेशन એટલે બાયનોક્યુલર થી, एंड फायर એટલે ત્યાં डायरेक्ट, दैट इज 1। अगर वो रोड पे जाएगा नहीं। और जब था मई में, तो हमको टास्क मिला था 14,000 टन, એટલે डिवाइडेड बाय 3 कर ले, એટલે डेली 60 to 70 ट्रक्स मस्ट गो ऑन टॉप टू ले फॉर डंपिंग। राशन डंपिंग है, खाने का डंपिंग है, बकरा बिकरा બધું राशन सप्लाई गोज फ्रॉम दैट।
श्रीनगर से वहाँ, और हर एक को जिम्मेवारी दी थी। लाइक मेरे को सोनामर्ग से कारगिल तक दिया था, और वो गाड़ी जाएगी, उसमें कोई गाड़ी आवे बीच में, पाकिस्तान आतंकवादी रोक सकता है। तो ये उसका डोमिनेट, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब, इकोनॉमिक डिस्टर्ब, ब्रिंग इंडिया ऑन टर्म्स फॉर कश्मीर, कि चल तू खाली कर अभी, क्योंकि देर इज नो इंटरनेशनल बॉर्डर, इट इज सीज फायर लाइन। तो आई के जो आगे गया वो बैठ गए, जो पीछे गया वो पीछे, वही लाइन है ना जो 71 वॉर की है, उसको LOC बोलते या LAC बोलो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलो। तो NOA कभी तक, एंड सबसे लास्ट कि ह्यूमिलेट इंडियन आर्मी एज इट इज। साले इंडियन आर्मी क्या है, कुछ नहीं है, हमेशा मार खाते हैं। अब मार खा ही रहे, आपने देख लिया हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे थे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कैसे थे। ઘણા વર્ષોથી તમે કાશ્મીરમાં સેવા આપી છે ભારતીય આર્મીમાં, તો એ સમયનો કોઈ એવો એક્સપિરિયન્સ કે જે તમને આજે પણ આંખ આગળ યાદ આવી જતો હોય, એવી કોઈ ઘટના જે તમારી સાથે બની હોય? बिल्कुल, 2 इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मेरी डॉटर आई थी 22 मई 91 में। उस वक्त बहुत ज़बरदस्त चल रहा था ये कश्मीर फाइल्स, आपने देखी हुई है। कश्मीर फाइल तो सिर्फ 1% दिखाया आपको, एंड ये 6 બધું બરોબર દેખાડ્યું છે। मैं तो बोलता ऑल कवर करना था, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल प्रेशर કદાચ વધારે નથી દેખાડ, કારણ બાકી આ બધા ઉભડા થઈ જાત। કોણ? एक्स चीफ मिनिस्टर बचा બધા ઉભડા થઈ જાત। दे वर ऑल डूइंग इट, ऐसी बात नहीं है। आई डोंट नो वेदर आप श्रीनगर कभी गए हो, नहीं गए ना। श्रीनगर में आप जाते हो, वहाँ निशाद गार्डन आता है, 4 चिनार का ऐसा रोड है। अब जैसे मेरी डॉटर को मैं लेने गया श्रीनगर, वहाँ से वो आ रही थी उधर, उनको लेकर के मैं सोनामर्ग ले आ रहा था। वो मेरा इलाका नहीं था, वो इलाका मद्रास रेजिमेंट के बंदा था, CO साहब उनका। एक गोली करके निकले ऐसे, मेरी गाड़ी से गोली निकली वहाँ से। तो ड्राइवर पांडे वॉज देयर, आई वॉज कमांडिंग 154 मीडियम रेजिमेंट। मैं बोला पांडे जी गोली चली है। कहता साहब कहाँ चली है? मैंने कहा बैंड लगेगी तब तेरे को मालूम पड़ेगा साले, है ऐसा गोली निकली साले यहाँ पे। पीछे मेरी वाइफ बैठी थी, पीछे मेरी डॉटर बैठी थी, पीछे मेरा ऑपरेटर दूसरा पांडे बैठा था, वो ऑपरेटर था। तो ड्राइवर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, इससे सब आप नीचे मत उतरो। मैंने मरने दूँ सबको यहाँ। पीछे वाली गाड़ी में एक मशीन गन है, एक 2 इंच मोटर है, 6 आदमी है, उनको घेर के मार भी दिया होगा अभी तक। तो आगे वाली गाड़ी को रोक, मैंने कहा पांडे जी गाड़ी बुलाओ पीछे और चल पीछे। मैं आई गिव माई पिस्टल टू माई वाइफ, यू कैन आस्क हर, शी इज हियर ओनली। वो भी NCC लड़की है। मैंने कहा तैयार अभी। भाई डॉटर हुआ क्यों देख रहे थे कि वो देखो यार, आप बैंक में हो, आपको अपनी बीवी को बैंक दिखाओगे, कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा रिफाइनरी का तो अपने को दिखाएगा। मैं क्या, मेरी डॉटर को फिर पहली बार उसने मुझे देखा कि पापा वैसे वो जो उसने जो 40-50 मिनट का तांडव नृत्य देखा हुआ है। मैं जा कर के पीछे से मैंने बोली यहाँ से आई, इसका मतलब वहाँ से आई, इसका मतलब इस बंदे को पता है, तुझे पता है, एक्सपीरियंस था। तो मैं इतना उठा कर लात हमारे जी को, आप आ जाए ना ऊपर, ત્યાં સુધી हमारी लात जाते, कमांडो क्वालिफाइड हूँ। मारा कैच को, मैं मारा तो मेरा दूसरा वाला जो पीछे वाला वो भी गाड़ी आ गई, उसने भी मैं मारा साले कुट कुट साले को। बता कितने आदमी? एक आदमी गोली नहीं मारेगा भाई। प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल, 3 मानस तो ओछा मोचा જોઈએ જ। पकड़, हाथ खड़े किए, तब तक तो फौज आगे रेडियो सेट इतना वहाँ पे आगे, CO 154, CO टाइगर 154, एम्बुश टाइगर 154, पूरा वैली में फैर गया। टाइगर 154 तो मैं ही था, विजय शक्ति जो 154। दैट टाइम माई डॉटर वॉज शॉक्ड। ब्रिगेडियर साहब टोल्ड मी, बेटे वापस आ जा, आगे मत जा, आज बहुत खतरा है। तो मैंने मेरी तीनों गाड़ी को वापस बुला लिया। दूसरा, अब ये जो मेरे को पकड़ा दिया उसने बिकॉज ऑफ माई फिजिकल फिटनेस, ऑल दिस। अमरनाथ गए आप लोग? नहीं जाओ यार, अमरनाथ क्यों नहीं जाते आप लोग? गुजरात सबसे ज़्यादा गुजराती अमरनाथ में जाते हैं। तो मेरे को दे दिया मेरा एक कॉलम बल्टाल से अमरनाथ का जिम्मेवारी। मेरे को रातों रात बुलाया वहाँ पे। मैं रातों रात गया, ब्रिगेडियर साहब को मिला श्रीनगर में। टेलीफोन पर नहीं बताते इन्होंने, कहता बेटा कल से तू संभाल सिक्योरिटी, जितने भी लोग आते हैं कोई यात्री का मर्डर नहीं होना चाहिए, आतंकवादी। मेरा राइट सब दैट्स द स्पिरिट। फले दारू पी। मेरे को 2 लार्ज पिला दिया है। सुबह उठकर मैं इधर आया, पूरे कॉलम मेरे तैयार किए, सबको मोरल बूस्टिंग का लेक्चर दिया, सबको दिया, आप फिट कर। मैंने, मेरा सूबेदार मेजर बहुत तगड़ा रेसलर था, सर्विसेज रेसलर,
यू गॉट माई आइडिया। हम क्या कर सकते तेरे को पता नहीं, मेरे पे सरदार भी है, राजपूत भी है, मराठा भी है, मेरे मिक्स बटन है। प्लीज यू नो एवरीथिंग, तू मुझे बताएगा, और कहीं तू शामिल होगा ना, याद रखना काट दूंगा। सर ये डर पैदा करना पड़ता है। अब इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, इसलिए तो मणिपुर हो रहा है। अगर इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर होगा तो ये हरियाणा में कैसे होगा? सवाल है मेरा। गिव यार, तू एक हथियार लेके खड़ा है, मिसाल है साला, उसमें 20 गोलियां बड़ी ठक ठक ठक, अरे 2-3 गिरने के बाद अब बंदे फट जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन आप डर हमको और हमको डरा रहे हो। ना फायर नहीं करो, हाथ बांधे नहीं बे, हम जक मारो मैंने पगार आपको चलो मैं। ये मेरा कंसेप्ट अलग था, बिकॉज आई हैव सीन 71 वॉर। आई विल नॉट एक्सेप्ट, आई हैव सीन दैट क्या बोलते हैं आपका ये आतंकवादी के चक्कर में। एक दिन शाम को मुझे मैसेज आया कि साहब हमने भी हमारे बंदों को दाढ़ी बढ़ाना बढ़ा दिया, उनका नाम चेंज कर दिया, रफ़ीक कर दिया। तो वो पान वाले ने बोला मैं बकेट यहाँ से यहाँ रखूँ, तो साहब समझ ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, 2 नंबर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो बकेट इधर आई तो वो बंदे घूमते रहते सुबह, दे उनका खाना वहीं पे भेज देते, तो मुझे लो इसे कैंप के पास नहीं आने का, लेकिन है हमारे जवान। ये करना पड़ता है यार, सिक्योरिटी देश के लिए यार। ऐसे थोड़ी है सब जगह थोड़ी जनरेटर मिलेगा तेरे को। रात को कोड वर्ड बुला बोलते ही हमारी गाड़ियाँ स्टार्ट होती थी, सब लाइट में, एक लाइट इधर एक लाइट इधर, जितनी भी गाड़ियाँ, पूरा मेरा कैंप से अलग लाइट अप होता था। सरकार ने सर्च लाइट देनी है तो दो, है तो मत दो, हम तो हमारा काम किया। लेकिन अभी है, अभी सब कुछ आ गया, सर्च लाइट है, जनरेटर है, हमारे बच्चों को पास गर्म पानी मिलता है, सब हम हमारे बच्चों को भी गर्म पानी दिया, नलाया, गर्म खाना खिलाया, सब कुछ खिलाया। लेकिन यार हार्ड लाइफ थी यार। तो ये इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ है क्या करना चाहिए, ठीक है। अब राते आवे છે બે જણ છે ને પહેલાં કરે છે એની છોકરીઓને, तो मैं रात को खाना खा रहा था, मेरे साथ बाकी ऑफिसर लोग आ गए थे ड्यूटी से, तो इमीडिएटली आई टोल्ड देम। बाकी मेरे तो 20 आदमी हमेशा तैयार रहते 24 घंटे, बॉडी गार्ड मेरे, कमांडो क्वालिफाइड। पहुँच गए, एक ऑफिसर को बोला तू आगे से मारियो, तो पीछे से मारना दरवाज़ा। सर ठोका ठोका दे के साला वो पुलिस वाला वहाँ खड़ा है और दूसरा आतंकवादी, दे आर रेपिंग दैट गर्ल यार। सौ ठोका है ना उसको, जितनी बार याद रखेगा कि साला तुम किसके साथ पाला पड़ा है, गलत आदमी साथ। इंटायर सोनामार्ग वॉज वेरी हैप्पी। हम रोज शाम को घूमने जाते थे, कोई मिसाल है मेरे को फायरिंग करने, डर डर फॉर गुड, अच्छे काम के लिए। वेर अ सोल्जर, नेशन फर्स्ट, इंसानियत उसके साथ साथ आती है। જે મૂવી આવી છે કાશ્મીર ફાઇલ્સ, એ અને તમારું જ્યારે પોસ્ટિંગ હતું એ ટાઈમે કેટલો ફરક છે? જે મૂવીમાં અને હકીકત, જે ગ્રાઉન્ડ લેવલની આપણે વાત કરીએ તેમાં ફરક કેટલો છે એ હકીકતમાં ને? बहुत कम कवर किया उसने। आप लोगों को एजुकेशन मिल गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही कम कवर किया उसने, अग्निहोत्री ने। ज़्यादा कवर करना चाहिए। अच्छा, पहले जज साहब को कैसे मारा दिखाया उसने आपको, है ना, केवल रीते आ रही वहाँ पहले ने छोकरी ने, फिर ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ। मैं तो आपको एक बोल भी दिया और वो सब डरते थे यार। एक चौकी के ऊपर वो एक हिंदू था, जम्मू का पुलिस वाला, वो डरता था साहब मैं रात को आपके पास आ जाऊँ। मैं कहा आ जाऊँ, वही से नज़दीक था नाले के पास, कहीं कोई पण कापी नाखे तो ना। उसके लिए मेरे जवान तो सुबह जाते, रात को शाम को 4-5-6 बजे आते। आई विल नॉट पुट बाय दैट, बट आई विल गिव यू गर्म खाना, इधर बैठ बेटा, लेकिन यहाँ तू सेवा करेगा। ये नहीं कि तू आया वो सब आपके इसमें हमला, मैं क्यों हमला, ये पुलिस वाली बात नहीं चलेगी, देश वाली बात चलेगी, देश हित पे बात चलेगी, ये याद रख। खुश हो गया। तो दैट इज हाउ यू टेक इट। एक आया बंदा खड्डे खोद रहा है आतंकवादी को, तो आया मैंने कि यार ये क्यों खोद रहा है, करे साहब यहाँ हथियार है। उस जमाने में हथियार छुपा के रखते थे, इनको सबको पता है। एप्पल वाली गाड़ी में हथियार नीचे आते थे, ऊपर आते थे बॉर्डर पे। अबे ये नवो नवो कर रहा तो पोते पण आम उभो छे। अब वो आतंकवादी खड़ा वहाँ पे, खड्डे खुदवा रहा है। कौन खुद रहा है? मेरा जवान। वो कहाँ खड़ा है? अब जब जवान खोदेगा तो हथियार अपना रखेगा साइड में, खोदवान जो भाई उसने ले आन तीनों को मार दिया। ओ आई आस्क्ड दैट कर्नल, एक तो तू साले मेरे इलाका में खोद रहा है,
ये इलाका मेरा है सोनावर के पास, हाउ कम? अरे यार भाई यार, मैंने कहा यार कम से कम पूछ तो ले। वो लोग होते ना, मेरे को अच्छा मिल जाएगा। एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट? किलिंग योर ओन फ्रेंड्स? ओ जवान, सॉरी सर, कर्नल फाल्नेकर विल नॉट डू इट। ना, लास्ट मिनट तक सबके साथ रहूंगा, सबके विकास, सबके पीछे पीछे रहूंगा। मेरे जवानों को चाहे तो मैं आगे या पीछे, खतरा होगा तो मैं आगे। वो गलत काम करेगा तो मैंने किया, अच्छा काम किया तो तूने किया। ये वहाँ पे उस टाइम पे हमारे हाथ बंधे थे। आई मस्ट शेयर विथ यू। जैसे ही बिपिन रावत साहब आर्मी चीफ बने, नरेंद्र मोदी जी बने, आपको सबको पता है ऑल आउट ऑपरेशन स्टार्टेड। ऑल आउट ऑपरेशन એટલે સ્કેન કરો નિકાલો, સ્કેન કરો નિકાલો। ઘણી બધી આપણે યુદ્ધ વિશે વાત કરી, ખરેખર આ બધી સ્ટોરી સાંભળીને મારા રૂવાટા ઊભા થઈ ગયા। એટલે હવે આપણે થોડોક સબ્જેક્ટ ચેન્જ કર્યા ને, જે લોકો આર્મીની તૈયારી કરે છે, જે આજના નવયુવાનો આ સાંભળી રહ્યા છે, એ આર્મીની તૈયારી કરે છે, તો એમણે શરૂઆત ક્યાંથી કરવી જોઈએ? यस, बहुत अच्छा सवाल है सर। आज के देखो, जो आदमी ग्रेजुएट नहीं है या जिसकी उम्र नहीं पढ़ाई कर सकता लेकिन फिर भी अग्निवीर स्टार्ट किया है, और जो आदमी ग्रेजुएट कर सकता है या एनडीए पास कर सकता है उसके लिए भी। लेकिन हर वक्त सरकार आपको एज फैक्टर रखते, એટલે 17 से 19 साल में 2 बार चांस, 17 में 2, 18 में 2, 19 में 2, मान लो 6 चांस हो गए नेशनल डिफेंस अकेडमी। वैसे ही आप कॉलेज में जाके ग्रेजुएट करके जाते हो तो भी आपको चांस मिलता है 20 से 25 तक, हर साल 2 चांस, चाहे एयरफोर्स जाओ, नेवी जाओ, आर्मी जाओ, डिपेंडिंग अपॉन योर साइंस बैकग्राउंड। तो ये बच्चों को पता होना चाहिए कि मैं एक बार मार खाऊंगा तो क्या हो गया, आई ऑल्सो फेल्ड वन। दूसरी बार, तीसरी बार मेरे पास बच्चे आते हैं, वो लड़की 8वीं बार गई, कोई बच्चा यहाँ ट्रेनिंग करता है वो 7वीं बार गया हुआ है, बट जो डोंट वाज देयर। हर वक्त ये वो अपनों को इवेल्यूएट करता था कि मेरे में क्या कमी है, अब क्या कमी है, वो क्या करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर फौज में आना हो या पुलिस में जाना हो या बीएसएफ, सीआरपी, पैरामिलिट्री फोर्स में जाना हो, मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक लड़की है, शी इज़ फ्रॉम मुंबई, और 9वीं 10वीं में 8वीं 9वीं में मेरे पास उसके पापा आए थे। तो मैंने उनको बताया कि बेटा तू जाना चाहती है, यू वांट टू वेयर यूनिफॉर्म? यस। मैंने कहा लाइफ इज़ वेरी हार्ड, सेपरेशन एंड સેક્રિફાઈસ, આ બે વસ્તુ સાથે જવાના। યુ આર સેપરેટ, ગરબો રમવા ના મળે, वी हैव टू सेक्रीफाइस सो मेनी थिंग्स ऑफ लाइफ। माई फादर डाइड, मैं नहीं आ पाया, मेरी मदर मर गई, मैं नहीं आ पाया, आई वॉज ऑन अ सीक्रेट मिशन अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आज तक मेरे को कलक लगा हुआ है, ए कर्नल साहब वाले कि अभी तो सब आते। अरे अभी जमाना अलग हो गया यार, अभी तो आपको डेड बॉडी बिल्कुल दिखा सकते हो उसके अंदर, उस टाइम में कुछ नहीं सर, और नहीं मिला हुक्म तो क्या करें। आई कैन नॉट आस्क द ब्रिगेडियर के साथ कैन आई गो, माई फादर इज नो मोर, बट एना पहला जने इन्फॉर्मेशन આવી ગઈ હતી। इसे यंग मैन आई केम टू नो। मैं कहा साहब जैसा आप बोलो। ये तो बेटे, मैंने कहा 12वीं 13वीं जाऊँ सब, कहता हाँ जा। मैं 2 दिन के लिए आया, अब फादर वॉज ओल्ड मैन, सी यू शुड बी प्रेक्टिकल होतो है। અહીંયા મોટા ભાઈ હતા, ધૈર્યથી બાકી ફ્રેન્ડ્સ હતા, પણ નામ બધા મૂવી પર કર્નલ સાહેબ નહીં આવે। सेपरेशन एंड सेक्रीफाइस, ये दिमाग में बिठाओ ठीक तरह। अगर ये ठीक है जुनून, अब आओ अगला स्टेप। तो उस लड़के को मैंने बताया कि बेटा तू, तेरी हाइट अच्छी है, सब कुछ ठीक है, पिकअप बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, दे आर द गेम ऑफ करेज। कबड्डी, खो खो हमारे टाइम पे था, these are the game of courage, तेरी टांग पकड़ना, ये करना, कुश्ती खेलना, मलकम करना, these are the game of courage। इफ यू कैन डू इट, ठीक है अंकल मैं करूँगी। मैं करूँगी नहीं, आई वॉन्ट यू बी टीम कैप्टन। उस वक्त एनडीए स्टार्ट नहीं हुआ, अब एनडीए स्टार्ट हो गया है लड़कियों के लिए 12वीं में। कहता अंकल ऑल, मैंने कहा देख तू मुंबई की है बेटा, स्पोर्ट्स हो गया, शी डिड वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल टीम कैप्टन थी इंटर कॉलेज में। अब देखा स्पोर्ट्स कॉलेज में क्या लिखोगे आप, बास्केटबॉल टीम कैप्टन, इस साल में, इस साल में, इस साल विनर। अब ऐसी लड़की जब तेरे सामने बैठी है अपना बायोडाटा फॉर्म लेकर के, दूसरा मैंने कहा तो सह्याद्री जा, माउंट आबू आ, डू सम एडवेंचर कोर्स। हर महीने में एडवेंचर कोर्स होता है, 3 दिन का, 10 दिन का, 4 दिन का। उत्तराखंड में जा बाद में, वही तेरे को भेजेंगे तो ठीक है, बट यू विल बी टीम कैप्टन। अभी नहीं, कल परसों तरसों जब भी जाते
गिव मी अ मैसेज अंकल आई एम द टीम कैप्टन लीडिंग माई टीम. जो टीम कैप्टन होता है, इट इज लाइक आई एम अ टीम कैप्टन ऑफ माई रेजिमेंट. So I have that experience. I may not run 10 किलोमीटर. I'll make you run 10 किलोमीटर so that कोई संकट में आएगा तू अपने को मेरे को गार्ड करेगा. मेरा जमाना था, मैं दौड़ता था. What have you done for regiment? That. तो साहब वो आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, एडवेंचर आ गया. फिर मैंने उसको बोला हॉबी क्या है. सर अंकल मैं तो स्विमिंग इज नॉट हॉबी, स्विमिंग इज अ स्पोर्ट. जा स्विमिंग में, वो गाना सीख ले, हॉबी, रीडिंग कर ले, पेंटिंग कर ले, कुकिंग अच्छा पिकअप कर ले कुछ. सर अंकल घर में पेटी है, पिकअप कैसियो बजा, ये बजा या जो भी है, ये हो सकता. मम्मी के साथ से मैंने कहा तू जब 20 गाने सीखेगी मेरे को बताना. सी यू हैव टू गिव द पैरामीटर. संजय 4 बजे तेरा ऊपर लेट वी डिसाइडेड ऑल दिस. 20 गाने हैं तो शी पिक्ड अप 20 सॉन्ग. मतलब कया है पण એને કીધા फास्ट सोम स्लो अने जीना यहाँ मैंने उसको सिखाया. मैंने कहा ये वर्ल्ड्स में आता है बेटा डांस में. प्लेइंग कैसियो लिख हॉबी में प्लेइंग कैसियो. चैरिटी बिगिंस एट होम. आई रीड इट फॉर माई सन आउट. तो शी पिक्ड अप दिस 3 प्लस मैंने कहा अभी तू ग्रेजुएट कर रही है बेटा, तू क्या मैकेनिकल कर रही है. हाँ करेगी आगे जा करके जो भी. हाँ मैं कहने बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स करना, वैकेंसी वो चीज़ है और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड ज़्यादा है. यू माइट गो टू DRDO, स्पेस में जा सकते बेटा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. मैंने रिक्वायर्ड परसेंटेज 60% से ग्रेजुएट में. मैंने कहा बेटा यू हैव टू हैव 75 से ऊपर, तभी तो तेरे एप्लीकेशन में वजन बढ़ेगा ना. शी गॉट 78%. सो एकेडमिकली शी गॉट 78%. स्पोर्ट्स में शी इज़ अ करेजियस बास्केटबॉल प्लेयर. माउंटेनियर થઈ ગઈ, हॉबी થઈ ગઈ. जब ये 4 कॉलम का वजन उसका बढ़ गया, टुडे शी इज़ अ कैप्टन इन इंडियन आर्मी. अच्छा ये तुम्हारे चोपड़ा ने क्यों. वाह. चाहे आप पुलिस में जाओ, यू हैव टू हैव दिस. देयर इज नो टू वेज अबाउट. और मैं तो बोलता हूँ अगर आप नहीं भी किए हो तो आपके जरिए से बताना चाहता हूँ अब माँ बाप को कि अपने बच्चों को अब ऐसा तैयार करो कि कम से कम ही कैन प्रोटेक्ट योर ओन फैमिली, प्रोटेक्ट योर ओन मोहल्ला. ऑटोमेटिकली देश की सेवा हो जाएगी. सो ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ. पढ़ाई का एकेडमिकली, हॉबी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर ये करना पड़ेगा. બરાબર છે. એટલે આ તો થઈ એક આર્મીની તૈયારી કરતા હતા. હા જેમને જવું છે આર્મી, એરફોર્સ, નેવી. હા એટલે એમના તૈયારી માટેની વાત થઈ. હવે આપણે એક સામાન્ય નાગરિકની વાત કરીએ તો જો એમને આર્મી જેવું ડિસિપ્લિન શીખવું હોય, એવી મેનર્સ શીખવી હોય ને એવી રીતે લાઈફ જીવવી હોય તો એમણે શું કરવું જોઈએ, એમને શું ડેવલપમેન્ટ કરવું જોઈએ. यू सी इजराइल आर्मी, बच्चा इतना हाइट पर राइफल के आता हुआ है, उसको एरिया मिल जाता है, शूटिंग बीटिंग प्रैक्टिस. ये एरिया तेरा भाई, पहला हॉर्न सायरन बजेगा, सामान पैकिंग, बीजू सायरन बजेगा, गाड़ी आवશે, तुझे सायरन में तू ત્યાં પહોંચી જા. कोई महावीर चक्र वीर चक्र मेडल નથી ત્યાં. यू आर डाइंग फॉर योर कंट्री. जबकि चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री घेरे हुए. इतना है आनंद डिस्ट्रिक्ट, इतना दम है, खिलाओ करके दिखाओ. दैट्स द नेशनल स्पिरिट साहब. दैट्स अ मिलिटरली स्ट्रॉन्ग. 6-7 पॉइंट तो तुमने કહું છું. यू नीड अ गुड गवर्नेंस. आपके पॉलिटिकल लीडर कोई सुन रहे होंगे, बच्चे सुन रहे हैं. यू नीड अ गुड गवर्नेंस. गवर्नेंस એટલે શું? લાઇટ આવે છે, પાણી આવે છે, રસ્તો है, भाई बैंक काम कर रहे हैं, लूटफाट तो नहीं हो रही. ऑल दिस गुड गवर्नेंस. सर यू नीड अ नेशनल स्पिरिट लाइक जापान, लाइक इजराइल, विच वी लैक. यहाँ बहुत जयचंद भरे हुए हैं जो हमारे जनरल बिपिन रावत को बोलते हैं ये तो सड़क छाप गुंडा है. और एक लेडी बोलती कि तुम मौत के सौदा करो, एक बोलता उसका बेटा तुम खून के दलाल हो. पाकिस्तान में बोल के दिखाओ हमारे जनरल को या हमारे किसी लीडर को. प्राइम मिनिस्टर यार, आपने इलेक्शन दिया उसके बाद फॉरगेट अबाउट इट. इजंट ही डूइंग गुड जॉब? कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर है, अरे यार उसको बताओ ना, करेंगे वो अच्छा काम. बट लेकिन एक दूसरे की टांग खींचना. सर इट शोज कि इनकी चमड़ी है वो गेंडे की है. दे आर फॉर चेयर पावर, मनी पावर एंड मसल पावर. कोई तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं. अब બરાબર. जरा दुख होता है वर्दी पहनने की. मैं वर्दी क्यों पहनाई? कभी कभी मुझे दुख होता है रात को. आज मेरे 200 बच्चे ऑफिसर बनाए, कोई मैंने गलत काम तो नहीं कर दिया गुजरात के बच्चों के लिए, लेकिन पगार अच्छा मिल रहा है. प्रिविलेज 2 लाख
सब कुछ है, मेरा बेटा खुद कर्नल है, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। हम तो उसमें से खतरनाक में से गुजरे थे, लेकिन मैं सोचता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, 4 साल की लड़ाई, डेड बॉडी में नहीं पहुंचे, माँ बाप को पता ही नहीं कि मेरा मर गया बेटा कहाँ है। थिंक पॉजिटिव। ये वक्त શું હતું આના કરતાં તું ठीक है। अब क्या है, अब ठीक है, कम से कम मैं लैपटॉप पे बात तो कर सकता हूँ मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, वीडियो कॉल। तो थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द बेटर, एंड व्हाट वी वांट आपको पता है। राफेल आ गया, सब आ गया, क्यों नहीं आया अभी? इफ मिलिट्रीली यू आर स्ट्रांग, इसलिए गुड गवर्नेंस, नेशनल स्पिरिट, मिलिट्रीली स्ट्रांग, ऑटोमेटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड गुड एजुकेशन टू द मास। सबको दो, जैसे आप एजुकेशन दोगे बच्चा इवेल्युएट करेगा। एंड लास्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। वी लैक, हम प्लान दिस मच, हम इम्प्लीमेंट दिस मच कर, हम करते ही नहीं इम्प्लीमेंट। अब यही रोड बन गए, यही टनल बन गई। जोजिला में हमको 6 घंटे लगते थे यार, अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे ऊपर यार। तो क्यों नहीं किया आप? कातरा टनल भी बन गया आपका। एक मिनट। तो ऑल दिस थिंग यू फील वेरी सॉरी कि आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, SRP लाइन देख लो आपके यहाँ के बड़ौदा की, उस टाइप की बात कर। निगलेक्ट, वो बेचारा पेट के लिए फौज में आया, कहीं वर्दी पहने, डोंट नेग्लेक्ट हिम। ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली एंड सेक्रीफाइसिंग हिज यूथ फॉर द नेशन। ये मैं आपके माध्यम, जब ये 2 चीज़ें हैं, आई एम श्योर नेशन विल बी स्ट्रॉन्ग। બરાબર છે एज ऑन टुडे इम्प्रूविंग है बेटा, पहले नहीं था। સર તમારા જોડેથી અમને ઘણી બધી માહિતી જાણવા મળી। કારગિલનું યુદ્ધ છે 1971માં જે ઇન્ડો પાકિસ્તાન વોર થયું હતું એ, અને આ સિવાય પણ કાશ્મીર વિશે, આર્મીમાં જવાનોને કેવી રીતે તૈયારી કરવી જોઈએ તેના વિશે પણ ઘણું બધું જાણવા મળ્યું। તો આ એપિસોડથી નવયુવાનો ઘણું બધું શીખી શકશે, ઘણું બધું નવું નવું જાણી શકશે। તો ફરી એક વખત બેઠકની ટીમ તરફથી હું તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ये मैसेज हमारे पूरे यूथ के लेवल पे पहुंचना चाहिए, तभी मज़ा आवे ना। तो ये बात है, जिसका जो तकदीर में होगा वो जाएगा आगे, नहीं तो नहीं अच्छा देश का नागरिक बनेगा। और क्या चाहिए अपने को यार? अभी आप देश के अच्छे नागरिक हो, मैंने गर्व था कि आज तो मैं कहीं ने, योर मिशन इज वेरी डिफरेंट। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आभार। હજી ઘણું બધું તમારી પાસેથી અમારે શીખવું છે, ઘણું બધું જાણવું છે। આજના યુવાનો પણ તેના માટે ઉત્સાહિત છે, તો આપણે બીજો એપિસોડ પણ કરીશું। आई एम ऑनर्ड, इफ यू इनवाइट मी, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू। શ્યોર સર, ઓકે, થેન્ક યુ સર।